fields, their own fields. Okay, Mazhar bhai. So they are the doyens of their, they are the experts, senior professors of the जी सर. university. मदर भाई एक पार्टिसिपेंट था रोज सेंथिला, ऐसी कुछ नाम था, तो ये है मैंने तो सर. जी रोज सेंथिला फॉर्म. कोई था, हमारे पार्टिसिपेंट हैं ऐसे? जी है, ये रे ए बना हुआ है, देखिए ए जिस पे बना हुआ है ए. अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मैंने बोला था कैमरा खोल लेके नहीं, तो बोले नहीं। हाँ ए बना हुआ है, चलिए कोई नहीं। मैंने पार्टिसिपेंट्स कम से कम जाने कि कोई ऐसा ना हो कि कोई, चलिए थैंक यू। सो पार्टिसिपेंट्स, we have a strength of 20 right now. All of our participants have joined, and thank you that you have acceded to our request and opened your cameras just for this for interaction, that who are our participants. Because had it been offline course, we would have been interacting physically. Because it is online mode, so we are interacting in the online mode. Therefore, in the online mode, we must open cameras as well as sometimes unmute ourselves so that we can interact. Okay, just for a few seconds only, a few minutes only. So now it's participants have reached to 20. Now I would request our valuable resource person, Professor Asim Zafar sir, to give us permission to start our session. Sir, can we start, sir? Please go ahead. Please go ahead. Thank you, sir. Sir, about participants, sir, they are the, as you already know, sir, you have been the part of our nearly all of our sessions in all our programs of orientation and sensitization about NEP 2020. Sir, we have successfully completed 20 programs. This is the 21st program, and fifth of mine as a course coordinator, sir. Thank you, sir, for your kind support, help. Sir, the participants, as usual, they are the assistant professors, associate professors, lecturers working in different universities and colleges of our country. And they are very sincere and very dedicated, committed. As and when you will ask them, they open their cameras, except few ones. But you know that I was asking him, he was not opening due to some other reasons. Why, I don't know. Otherwise, 99% participants are good. They know the art etiquettes of online teaching and learning. They will be with you throughout your sessions, because you have 2 sessions. You must need sincere participants, and they are sincere participants, sir. And now participants, we have with us, as we have already seen, a very senior professor from this university, Aligarh Muslim University, Professor Asim Zafar sir. As I was saying, we have selected after a thorough discussion with our team, with our director, Honorable Director Dr. Faiza Abbasi Madam, with our other team members. We have always selected the best of the best resource persons for your orientation and sensitization. So another best resource person of today is, okay, Rose Madam, I get your, Madam or sir, I don't know, I've got your message. No issue, thank you. So we have with us for today's session is Asim Zafar sir, who is having experience of more than 3 decades, more than 30 years he has been in this profession of teaching and learning and administration. Sir is presently working as professor in the Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh. And sir is the gold medalist of MCA, Master in Computer Applications. Sir has completed before MSc, MCA. Sir has completed a BSc and MSc and B.Ed, then MCA, then PhD. And sir has published around 90 research papers in various national journals of national and international repute. Sir has presented a good number of papers in various seminars and conferences. Sir has organized around 25 seminars and conferences. Sir has completed successfully many research projects, including the 3 research projects when those projects he has completed when he was in King Abdul Aziz University, Saudi Arabia. Sir has been invited as resource person regularly by nearly all the HRDCs, MMTTCs of our country. He is regularly invited by our HRDC or MMTTC for orientation program, for refresher courses, for FDPs, for STCs, short-term courses. And in every NAP, he is the regular resource person. Why? Because of his sheer quality. Because of his sheer quality, he is the resource person in every NAP program, or in every orientation program, in every FDP, faculty development program, and many other programs. He has developed study material for VCA and MCA students, VCA and MCA courses. He has developed many programs, many softwares, and helped in implementation also. Some of the programs developed by him
which is one of the important contributions in the field of computer science and for making the life of the citizens easy. That is library management system, LIBMS, election management system, EMS, sales order procurement system, HRD MIS as a payroll system, hospital management system. All these softwares have been developed by Professor Asif Zafar sir. Along with this wonderful academics, as I have already informed you about Professor Asif Zafar, he is equally good in administration. He is right now working as OSD, Officer on Special Duty of Aligarh Muslim University. He has successfully worked as chairperson, Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh. He's also presently working as coordinator of IGNOU Study Center. We have a IGNOU Study Center, Aligarh, and he's the coordinator of that center also. He's also working as UGC SWAM coordinator. You already know about SWAM. It's not new to you, participants. He's the member of Center for Internal Quality Assurance, Department of from Aligarh Muslim University, Aligarh. He is working as convener of website committee, member of ranking committee, Aligarh Muslim University, Aligarh. Worked as a TPO of Department of Computer Science, AMU. He has successfully worked as assistant DSW. He was also in the DSW team. He has worked as assistant superintendent of examination, superintendent of examination of computer science department, tabulator. Why I'm telling all these things, I am trying to tell you that what a wonderful personality we have with us for this session. He has also worked as the member of University Court, AMU, member of Academic Council, AMU. Always busy in developing softwares for making the life of the citizens of this country easy. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for helping us in making our life easy as a member of the society. We are very happy, sir. Once again, we are delighted that you are here and you have acceded to our request. We are very grateful, sir. With these words, I would like to invite Professor Asif Zafar, sir, who will be with us for both the sessions. First session is on e-content creation. Second will be its extension. Thank you, sir. Thank you very much, Shakir Sir, for your detailed introduction, and congratulations to you for completing more than 20 programs as coordinator. And that is a great achievement in itself. And it shows your dedication towards this cause. So congratulations once again, and thank you very much for your detailed introduction. Dear participant, hope, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, fine, sir. Yes, sir. So today we'll be discussing about e-content development for SWAM platform. So the topic will be e-content development for SWAM platform, and basically the courses which we develop for SWAM platform, they are known as massive open online courses. So many a time we will be calling these MOOCs courses, massive open online courses. So SWAM is a basically platform on the internet where we launch or where we upload the courses, various online courses for the students. And these courses in general are known as MOOCs or massive open online courses. What we basically plan for 2 sessions for today is that why do we need for this online mode of teaching and learning? What is the role of synchronous and asynchronous mode of communication in online mode of teaching and learning? Further, we will see how we can supplement online teaching and learning through the help of open educational resources and another concept is there, MOOCs. So how OER or MOOCs are helpful in achieving the objectives of online teaching and learning, that we will discuss. Then we will see the first initiative towards e-content development, that is commonly known as EPG Pathshala. So that was an initiative by the Government of India for developing e-contents for the students. So that we will see how it has contributed towards digital teaching and learning. After that, another paradigm was introduced, and that is known as MOOCs. We will discuss after that what is the MOOCs and how we can develop MOOCs for various courses.
Next, we will try to discuss the development process of MOOCs. After that, we will be discussing what are the other platforms available for MOOCs apart from or besides SWAYAM platform. What is the process of funding for these courses? So funding for development of MOOCs, is there any support or government support for developing or for the development of MOOCs or not? That we will discuss. And lastly, we will try to discuss life cycle for MOOCs courses. So during 2 sessions, we plan to discuss all these topic over here. Participants, I would like to know from you, is it clear to you, or am I audible and my slides are visible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, So sir. with your kind permission, may I take a break of 2 to 3 minutes and then I will come back for my presentation. Fine. So just I'm taking a 2 to 3 minutes break. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So please bear with me. Hello, participant. Actually, I'm not getting the voice. So yes, sir. जी शाकिर साहब, मैंने ब्रेक लिया था 2 मिनट का शाकिर साहब, ठीक है. Okay, so first of all, participants, please confirm, am I audible? Kunpana sir? Yes, sir. Yes. Okay, Yes, okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So why do we need online teaching and learning? The first thing which we would like to discuss with you. During the pandemic period, we were left with no option but to go for online mode of teaching and learning. But now, sir, fortunately,
pandemic period is over, and we have normal days over there, and we have come back to our normal classes. We do have face-to-face teaching nowadays. Then why do we need online mode of teaching and learning? So first of all, we would like to find out the answer for this question, and then we will proceed further. During the pandemic, sir, what happened basically, all the students and teachers, there was no way to be present in the campus, or there was no way to have face-to-face mode of interaction as we had in the traditional mode of teaching. So we were left with no option but to go for online mode of teaching. So the students were present at their hometown. We were locked up in our residences. And just to minimize the academic loss of the student, or just to, you can say, safeguard the academic interest of the student, somehow we started using online mode of teaching with the technology which were available to us. Whatever technology was available to us, maybe using Google Meet, somebody was comfortable with Zoom, whatever technology was available, we just started engaging our students so that we could minimize the academic loss of the student, or in other words, you can say, we can safeguard the academic interest of the student. So we just started engaging the students in the online mode of teaching. And we were using video conferencing software like anybody, like we were using Google Meet, somebody was using Zoom, somebody was using Meet. There were so many available options, and whatever technology was available to the teacher, they started using that technology to engaging the students. And this happened for at least 3 or 4 semesters, basically, because the students were not allowed to go to the campus. And we were not only teaching, we are not only engaging using that mode of online mode of teaching, but we were taking the exams as well. We were conducting exams of the student in the online mode as well. So during this period of time, we have learned a lot of things. Whenever we had started for the first time, we were novice. हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी टेक्नोलॉजी की. So we were very new to that. And whenever we have finished the teaching of one semester, we could find out that, okay, these are the things which are missing over here. If we can do it in a better way, we can provide the students better counseling, better teaching or learning facilities. So in the next semester, we try to improve something over there. हमने कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और we started sharing some course materials or notes with the students so that they could be benefited from that. So during these 2 years of time, we have learned a lot of things as far as the technology is concerned, or technology related to online teaching and learning is concerned. बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा इसमें. और उसके बाद सर एक चेंजेस आया. That changes all of us has seen के the student and teacher both started feeling comfortable with online mode of teaching. उनको लगने लगा कि हाँ ये तो ठीक है. शुरू में दोनों को परेशानी थी. Both the students and teachers were not comfortable with that, and that is a fact in itself कि भाई online mode of teaching is not as much effective as face-to-face mode of teaching. Face-to-face mode of teaching में हम लोग बात करते हैं वो बहुत ज्यादा effective है. Always it is true. But उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. We were left with no option for face-to-face type of interaction. So we were using online mode of interaction with the students, and we were engaging our students for teaching and learning purposes. During that period of time, we have learned a lot of things. और उसके बाद, whenever you used it for 2 years time or for 4 semesters, we became used to of this technology. और हम लोग बहुत comfortable महसूस करने लगे. Both the students and teachers started feeling comfortable with this technology. और हमको लगने लगा कि नहीं सर, इसमें भी काम बहुत सारा तो हो जाता है. ठीक है, it cannot replace face-to-face mode of interaction, but it can supplement face-to-face mode of interaction. उसको supplement जरूर कर सकता है, इसको replace नहीं कर सकता completely. ठीक है, as a teacher and a student, we would gather at one place, we'll assemble in our classrooms, we will interact with our teachers, we will learn from them,
And besides that, we will continue teaching and learning process in the online mode as well, just to supplement the face-to-face mode of teaching, not to replace it. एक चेंजेस आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इंडिया में आपने सर सभी लोगों ने सुना होगा कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग वर्क फ्रॉम होम। एक कल्चर का नाम आपने सुना होगा कि लोग घर में बैठे, खास करके द पीपल हु आर वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस फेनोमेना वर्क फ्रॉम होम। और हम सभी लोगों ने इसको सुनना शुरू किया इंडिया में, खास करके ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम। और जो लोग आईटी में काम कर रहे थे उनसे कहा कि नहीं, आप अपने घर पे रहिए, ठीक है, और वहीं से काम कीजिए, वी विल कीप ऑन असाइनिंग द टास्क टू यू, यू जस्ट कंप्लीट द टास्क ओवर देयर using your laptop and send it the final result to us. And in this mode, basically the IT companies was successfully operating over there, and the concept being known as work from home. उनको पूरी सैलरी मिल रही थी एम्प्लॉय को, and this concept was beneficial for both. It was a win-win situation for both the company, the IT company, as well as for the employee. For the employee, it was beneficial in the sense that the employee was spending a pleasant time with the family. ठीक है, वो फैमिली के साथ रह रहा, अपने घर में रह रहा, he is spending time with the family, and साथ साथ में वो क्या कर रहे हैं, अपना काम भी साथ में कर रहे हैं। जब भी उनको टाइम मिला अपना काम कर लिया, and rest of the time they are spending with the family members, and they were living with the parents, and they were going for shopping and everything, so they were having a pleasant time over here. कंपनी के लिए क्या फायदा था? All the establishment cost was saved over there in case of the company. Establishment cost means उनको किराया देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, बिजली का खर्चा होता है, एसी चलता है, उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, वो सारा खर्चा उनका बचने लगा। तो इट वाज ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉय। और अब इवन द पैंडेमिक इज ओवर, अभी भी वो सारी कंपनीज फुल्ली और पार्सली ऑपरेट कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर में। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे कंपनी ने स्टार्ट किया कि ठीक है, आप महीने में 4 दिन कंपनी में आ जा करिए, रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्पेंड विद योर फैमिली मेंबर्स एंड वर्क फ्रॉम होम, नो इशू, एंड यू विल गेट फुल सैलरी ओवर देयर। दैट इज द थिंग। किसी कंपनी में कहा कि आपको 15 दिन आना पड़ेगा, 15 दिन आप घर में काम करिए, किसी ने कहा 2 महीना आइए, 1 महीना वर्क फ्रॉम होम। सो स्टिल दे आर वर्किंग इन दिस मोड। सिमिलर इज द सिचुएशन विद द एकेडमिया एज वेल। शुरू में हम लोगों को सर बहुत दिक्कत हुई जस्ट टू ट्रेन द टीचर्स ओवर देयर, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू ट्रेन द टीचर्स मच बिफोर द पैंडेमिक हैपेंड कि ऑनलाइन मोड ऑन, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग द टीचर्स एंड ट्रेनिंग द ट्रेनर्स प्रोग्राम। So I was facing a lot of difficulty in training the teachers for this mode of teaching. लेकिन कहते हैं कि necessity is the mother of invention. जब या आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा हम कहते हैं। तो जब पड़ी हम लोगों पे मुसीबत पड़ी पेंडिंग में और वी वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, तो हम लोगों ने अपने आप एक नया काम करना शुरू कर दिया और अपने आप हम सीख गए इस टेक्नोलॉजी को, एंड वी बिकेम कंफर्टेबल विद दैट। और अब इतने कंफर्टेबल हो गए कि हम लोग चाहते हैं, इवन द स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी ऑफ द मीटिंग्स आर हैपनिंग इन द ऑनलाइन मोड। बहुत से वाइवा आप अपने कंडक्ट कर रहे हैं, पीएचडी का वाइवा हो, एग्जामिनेशन वाइवा हो, दे आर बीइंग कंडक्टेड। lot of meetings, either maybe the board meeting or any other meetings, they are being conducted in the online mode. So everybody is comfortable with this mode of teaching। और कहिए कि एक नई विधा का जन्म हुआ, एक नई चीज हमारे सामने आई और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया बहुत खुशी से और हम लोग करने लगे। एकेडमिया में भी ये बात ट्रू है सर। एकेडमिया में ट्रू ये है कि अब यूजीसी ने क्या किया, कि यूजीसी का एक रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन 2021 कहते हैं। Initially it was known as UGC Regulation 2016. Later on फिर उसको रिवाइज करके उन्होंने किया UGC Regulation 2021. And according to that regulation, the UGC says that a student can take up to 40% of credit from SWAYAM courses. SWAYAM courses means by completing the MOOCs or massive open online courses which are available on the SWAYAM platform. Commonly they are known as SWAYAM courses. Dear participant, please confirm, am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, fine. So UGC regulation says that a student during the complete tenure of the program,
If I am talking about FYUP graduation program, it is 4-year program. If I am talking about master program, it is 2-year program. Or at many places, the graduation program is of 3 years. So I am talking about all the 3 years duration or 4-year duration of the program. So during the duration of program, a student can take up to 40% of the credit. What does it mean? Say for the example, a student is allowed to have a graduation degree after completing 100 credits. I'm just taking an example, 100 credits. कहने का मतलब 100 क्रेडिट जैसे ही अर्न कर लिया उसने 3 साल में या 4 साल में, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री आप देते हैं। और मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि एक कोर्स जो है आपका 4 क्रेडिट का है, एक कोर्स 4 क्रेडिट का है और उस स्टूडेंट को 100 क्रेडिट करना है, यानी उसको 25 कोर्सेज में पास होना पड़ेगा। स्टूडेंट विल हैव टू क्लियर और हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट 25 कोर्सेज, ईच कोर्स ऑफ 4 क्रेडिट, सो टोटल विल बी 100 क्रेडिट। तो यूजीसी रेगुलेशन ये कह रही है कि अगर 100 क्रेडिट में आप यूजी की डिग्री देते हैं या कोई भी डिग्री देते हैं, तो उसमें से 40% क्रेडिट यानी 40 क्रेडिट का मतलब इफ वन कोर्स इज ऑफ 4 क्रेडिट देन 10 कोर्सेज, 10 into 4 40, so 10 courses a student can do or can successfully complete from स्वयं प्लेटफॉर्म। तो 25 में से 10 कोर्स स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स में करेगा यानी स्वयं कोर्सेज से कर लेगा, और 15 कोर्सेज जो बचते हैं वो उसको फेस टू फेस मोड ऑफ में करेगा। दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द यूजीसी। तो यूजीसी ने कहा कि ठीक है, तो ये ऑनलाइन को कहने का मतलब ये है कि इवन द पैंडेमिक पीरियड इज ओवर, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग से हमारा जान छूटने को नहीं है। इन सम वे और अदर वे इट विल रिमेन विद अस, ये हमारे साथ रहेगा एंड वी विल हैव टू अडॉप्ट टू दिस और टू सच काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर बीइंग टेकिंग प्लेस ओवर हियर। तो अगर आप यूजीसी ये कह रही है कि 40% क्रेडिट ऑनलाइन कोर्सेज से होगा, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज आएंगे कहां से? हु विल डेवलप दिस ऑनलाइन कोर्स? दैट इज द क्वेश्चन। So, okay, that courses over the period of time will be developed by you and me, the teacher of the institutions. You as a teacher will be asked to develop these courses. Whatever papers, whatever courses you are teaching at your university, you can develop the online course for that, online modules for that, and you can upload it on the SWAYAM. And for doing all these things, you will be suitably paid. इसको जो है एक कोर्स को डेवलप करने के लिए अभी हम लोग बात करेंगे, उसमें द गवर्नमेंट गिव्स यू 3 lakhs of rupees। तो हम लोग उसको बात करते हैं सर कभी कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, दैट वी विल कम ऑन लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हम लोग बात कर रहे थे कि ये ऑनलाइन कौन कोर्सेज करेगा डेवलप, तो ये दैट विल बी डेवलप्ड बाय यू एंड मी। ठीक है सर, हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। तो एक नीड तो अब ये हो गई कि यूजीसी ने ये मैंडेटरी कर दिया है, एंड फर्दर इट इज टेलिंग सर, यूजीसी का रेगुलेशन में आगे फिर देखिएगा लाइन पे ये कह रहे हैं कि the parent university will transfer the credit earned by the student to the grade sheet of the student। कहने का मतलब है अगर एक लड़के ने 4 क्रेडिट का एक कोर्स किया और सर्टिफिकेट अगर लाता है, then the controller of examination of that university will reflect the grade earned by the student on the grade sheet of the student which will be issued by the university। जो यूनिवर्सिटी जो इशू करेगी, आई मीन टू से कि मान लीजिए सर कि एक सेमेस्टर में 5 कोर्स उनको करना था, 5 पेपर पढ़ने थे, 4 पेपर तो उन्होंने रेगुलर मोड में किया, फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग में किया, जहां पर यूनिवर्सिटी में उसने क्लासेज अटेंड की, बाकायदा एग्जाम दिया और उसने पास किया 4 को। एक कोर्स उन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म से किया ऑनलाइन और वो भी पास कर गया 4 के। पास करने के बाद अगर वो सर्टिफिकेट लाता है, द स्वयं और द यूजीसी इशूज a certificate after successful completion of the course। If any student successfully completes, a certificate will be issued। If that student produces that certificate to the controller, तो वो 5वां कोर्स सर वहां लिख दिया जाएगा कि this student has completed the 5th course from स्वयं, acquiring 60% mark, 75% mark, whatever marks are written over there on the certificate। So that is mandatory। उसके आगे अभी दिखाता हूं सर कि लिखा हुआ उसमें रेगुलेशन में, no university will refuse the credit earned by the student by successfully completing the स्वयं कोर्स। तो अगर स्वयं कोर्स में करता है और 4 क्रेडिट या 2 जो भी अर्न करता है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी रिफ्यूज नहीं करेगी। क्यों नहीं रिफ्यूज करेगी? उसके ग्रेड शीट में उसको रिफ्लेक्ट करना है। सो इन वन वे और अदर वे
आप देखिएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम मैंडेटरी सॉर्ट ऑफ थिंग कि लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग टू रिमेन विद अस in some form or other form, no matter whether the pandemic period is over or not. यहां तक सर क्लियर है? कुछ बात हम लोग आगे करें यहां तक? यस सर। बात ये हम लोग कर रहे थे कि ऑनलाइन टीचिंग किसी ना किसी फॉर्म में अब रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक ओवर हो गया, ठीक है सर, वो 2 साल की बात थी, बहुत विपदा का टाइम था, हम लोगों ने किसी तरह से उसको झेल लिया, किसी तरह से कर लिया, चलिए अब वो पीरियड ओवर हो गया अल्लाह अल्लाह करके, तो अभी हमसे जान छूट जानी चाहिए थी ऑनलाइन टीचिंग से। नहीं सर, तो अब हमारी जान नहीं छूटने वाली इससे, ये किसी ना किसी फॉर्म में हमारे और आपके साथ रहेगा। I was talking about that regulation. I am just showing you that regulation so that you can have an idea of. आप बताइएगा सर, हमारा स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं? भारत सरकार का दिख रहा है, भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया दिख रहा है सर स्क्रीन में? यस सर। ये सर देखिए, ये मार्च 21 का गजट है। ये जो पहले मैं बताया 2016 का था, उसको पहले हिंदी में होता है, उसके बाद इंग्लिश वाला होता है। तो आप इसको पढ़िएगा सर, ये नेट पे अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल मैं बता दूंगा, अभी कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए मूक से रिलेटेड सारी बातें सर यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम आपको रेलेवेंट पोर्शन जो हम आपसे बात कर रहे थे अभी, यहाँ देखिए सर, लिखा नंबर 6 पे पढ़िएगा सर, क्रेडिट मोबिलिटी ऑफ स्वयं बेस्ड कोर्सेज। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट स्वयं पे कोर्स करता है तो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा उसके ग्रेड शीट पे, उससे रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं सर। आप अगर देख पा रहे हो सर हमारे स्क्रीन को, जरा कंफर्म कीजिएगा सर, हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 देख पा रहे हैं यस सर। ओके फाइन, पढ़िएगा सर क्या है। द पेरेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब है जहां पर लड़का फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, जहां पर इनरोल है ना। द पेरेंट इंस्टीट्यूशन शैल गिव द इक्विवेलेंट क्रेडिट वेटेज टू द स्टूडेंट फॉर द क्रेडिट अर्न्ड वाइड ऑनलाइन क्रेडिट कोर्सेज थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म इन द क्रेडिट प्लान ऑफ द प्रोग्राम। मैंने उनके ग्रेड शीट में रिफ्लेक्ट करेगा उसको। अगर एक लड़के ने 4 क्रेडिट का कोर्स किया है तो दैट 4 क्रेडिट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रेड शीट ऑफ द स्टूडेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रेगुलेशन सर। एम आई क्लियर सर? यस सर। इसी का दूसरा पार्ट देखिएगा, 6 का पार्ट 1 तो ये था, दूसरा पार्ट सर ये क्या कह रहा है, नो यूनिवर्सिटी शैल रिफ्यूज। देखिएगा सर, ये साफ साफ लिखा हुआ, नो यूनिवर्सिटी शैल रिफ्यूज एनी स्टूडेंट फॉर क्रेडिट मोबिलिटी ऑफ कोर्सेज अर्न थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। अगर एक बच्चे ने स्वयं प्लेटफॉर्म से 4 क्रेडिट का कोर्स किया है और आपको 4 क्रेडिट का सर्टिफिकेट लाकर देता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं आपको सारा कोर्स जो है सो फॉर्मल मोड या रेगुलर मोड में करना पड़ेगा, हम इसको नहीं मानते। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कि ये गजट किसका है सर? भारत सरकार का गजट है, यूजीसी का नोटिफिकेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं यूजीसी रेगुलेशन 2021। तो आगे चल करके फिर यूजीसी ये कहती है कि ठीक है, पहले इस तरह का प्रोविजन तो नहीं था, पहले तो लड़के को सारे क्रेडिट कहाँ करने पड़ते थे सर? कहाँ सर? थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिव मोड में आ जाते हैं सर, थोड़ा सा जब भी मेरे से बातचीत करिए, थोड़ा सा खोल लीजिए अपना माइक्रोफोन वगैरह, बात करिए, है ना। अदरवाइज इट इज मोनोलॉग टाइप ऑफ थिंग होगा, तो 3 घंटे तक मोनोलॉग में अच्छा नहीं है। थोड़ा सा बात, पहले हम लोग किस मोड में होते थे सर? लड़के को सारा कोर्स कहाँ करना पड़ता था? ऑफलाइन मोड में। बिल्कुल ऑफलाइन मोड में करना पड़ता था, अपने कॉलेज में करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब मिक्स मोड हो गया। तो जब मिक्स मोड हो गया तो यूजीसी भी इस बात को समझती है, गवर्नमेंट भी समझ रही है, देन यू विल हैव टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इन द ऑर्डिनेंसेस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तब यही बात सर 7 नंबर पे देखिए कह रही है, 7 नंबर पर पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट इन द रूल एंड रेगुलेशन फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन थ्रू स्वयं बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज। इसके लिए कह रही है कि एवरी हायर इंस्टीट्यूशन शैल within 4 weeks from the date of publication of these regulation in official gazette will make the necessary amendments as may be required in their statute, ordinances, rules and regulation to adopt and incorporate the provisions of these regulation for seamless integration through स्वयं based online courses। कहने का मतलब है कि स्वयं से कंप्लीट किए हुए डिग्री क्रेडिट को ग्रेड शीट में ट्रांसफर करने के लिए अगर जरूरत है आपके रूल्स में, रेगुलेशंस में अमेंड करने की, तो अपना अमेंड करिए। और जो रेस्पेक्टिव बॉडीज हैं, बहुत से एकेडमिक काउंसिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडी, उनसे आप अप्रूवल अपना करवा लीजिए, ये जरूरी है। Am I clear सर? ये क्या कह रहा है? यस सर। इन द लाइट ऑफ दीज रेगुलेशंस आपको क्या लगता है सर कि ये अब ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा जान छूट जाएगा भविष्य में, यही कुछ और अब अपने साथ रहने वाला है? सर रहने वाला है। तो अच्छी चीज तो ये होती है कि देखिए डायनासोर कितना बड़ा प्राणी था सर,
सुनते हैं कि वो सब विलुप्त हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। अब लोग उसके कारण ये बताते हैं कि वो बदलते हुए परिवेश के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया। ह्यूमन की हिस्ट्री बहुत लंबी है। उसकी वजह यह है कि ह्यूमन की खासियत है ह्यूमन बीइंग की कि वो बदलते हुए वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। हमें आप गर्म प्रदेश में भेज दीजिए तो हम भी अडॉप्ट, मैंने भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, हम वहां अडॉप्ट कर लेते हैं। आर्कटिक रीजन में भेज दीजिए जहां -40 डिग्री होते हैं, हमारे बहुत सा सैनिक भाई वहां रहते हैं, तो वहां अडॉप्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि जो अडॉप्ट कर लेता है वो सर्वाइव करता है, और जो अडॉप्ट नहीं कर सकता है चेंजेस के, वो विलुप्त हो जाता है सर। विलुप्त का मतलब डिस्टिंक्ट हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है सर? यस सर। तो ये बदलते हुए परिवेश में हमें और आपको एज ए टीचर अब जिद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब देखिए आप भी सिर्फ मानते हैं सर कि जो फेस टू फेस ऑफ मतलब टीचिंग है दैट इज मोर इफेक्टिव। हम तो मानते हैं बाबा, कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हम शुरू में बोल रहे हैं कि हाँ बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन ये बदलते हुए परिवेश में हमको और आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ जो नया एक पैराडाइम आया है जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, तो हमें और आपको भी इस मोड ऑफ टीचिंग के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा इफ यू हैव नॉट ट्रेन इनफ, और इसके साथ जीना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा जान अब छूटने वाला नहीं है। तो अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, और नहीं सर हम तो ऑफलाइन पढ़ाते रहेंगे, तो ये वाला मोड से आप फिर कैसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि तो यूजीसी कह रही है कि 40%, कल को जाके अगर 50% भी इनिशियली 2016 में जब बात हुई थी तो उन्होंने 20% कहा था सर, उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ था 20% कोर्स। अब कह रहे हैं कि 40% तक स्टूडेंट ले सकता है, कल को कह सकती है कि 50% तक। कहने का मतलब आधा कोर्स उसको दोनों मोड में करना है। तो हमें एज ए टीचर क्या करना पड़ेगा सर, इस मोड के लिए भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग हमारे साथ सर रहने वाली है, ये कहीं जा नहीं रही है। मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा था। तो अगर रहने वाली है तो देन मैंने वी विल हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी की एक कोशिश है जो हम लोग आज कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस भी हो जाए और हम लोग इसके तरफ मैंने आप थोड़ा सोचना शुरू कर। 2 घंटे में तो पूरी ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम सेंसिटाइजेशन तो हो सकता है। हम आपको सेंसिटाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड, सो दैट वी कैन prepare ourselves for this kind of changes which is being happening around us. Am I clear sir? Yes sir. चलिए सर, तो हम लोग कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप लोग सभी लोग एग्री करते हैं। अब सर एक थोड़ी सी और डिस्कशन हम करते हैं आपके साथ। एक एजुकेशनल रिसर्च हुआ सर, सम साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया, उसकी फाइंडिंग्स हम आपके साथ शेयर करते हैं सर। फाइंडिंग्स ये था कि they have made a survey and they found that if the teacher is giving a lecture in the lecture mode का मतलब है कि if you are going to the class and simply delivering lecture in the class, you keep on delivering lecture for 40 minutes or 50 minutes for the duration of the class and you come back from the class after that, then it has been found that the memory retention of the students, यानी concept को समझ पाने की क्षमता और उसको याद रखने की क्षमता कितनी होती है, पाया गया कि it is not more than 20-25%. So it is around 20-25%. What I mean to say is that if you are delivering a lecture, if you are going to your class and teaching your student in the lecture mode means simply going into the class and giving the lecture for 40 minutes and then coming back. जो भी concept आपको पढ़ाना था, you are trying to explain the concept in the lecture mode, and after giving the lecture, you are coming back of the class. That is known as lecture mode of teaching. तो यहाँ पर पाया गया कि लड़कों से 2 दिन के बाद पूछा गया कि सर ने क्या पढ़ाया था। जैसे कि मान लीजिए कि दानिश सर हैं, दानिश मक्की सर हैं, दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, प्रभा मैम दिख रही हैं, सुजाता मैम दिख रही हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या पढ़ाया था, तो देखा गया कि लड़के हार्डली 20-25% कंटेंट को रिकैपिचुलेट कर पाते हैं या बता पाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरा ग्रुप ऑफ था, उसको क्या किया कि द टीचर स्टार्टेड टीचिंग देम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैप्स, सर्टेन प्रॉप्स, सर्टेन ग्लोब सॉर्ट ऑफ थिंग, सर्टेन पीपीटी। तो उन्होंने पढ़ाने में क्या किया सर, पीपीटी की मदद ली, कुछ फोटोग्राफ्स की मदद ली, कुछ मैप्स की मदद लिया। इसके थ्रू जब पढ़ाया तो इट हैज बीन फाउंड कि दैट मेमोरी रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स गोज बियॉन्ड 40-50%। यानी 3 दिन के बाद उसे पूछा गया तो लड़के वहां 40 से 50% कंटेंट रिकॉल कर पा रहे थे, बता रहे थे, उनको समझ में आया था 40 से 50%। कहने का मतलब मेमोरी रिटेंशन गोज और इंक्रीजेज इफ वी टेक हेल्प ऑफ सम मैप्स or some simulation or some PPT or some props while we are teaching.
इससे एग्री करते हैं आप लोग सर, ये नहीं करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद एक एग्जांपल सर बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। कि मान लीजिए कि एक 2 साल का बच्चा, अच्छा हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज? थोड़ा सा हमें बताएंगे सर। कभी कभी साउथ के कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी? Yes, sir. ओके, ओके फाइन। हम बात करते हैं कि देयर इज ए चिल्ड्रन, 2 साल का एक बच्चा है सर। अब मान लीजिए कि he has not seen elephant in his or her lifetime. अभी बच्चा है, बेबी है, उसने हाथी नहीं देखा है सर, एलिफेंट देखा नहीं है, and his father is trying to explain how does an elephant look like. अब देखिए सर, वो कोशिश कर रहे हैं पिताजी समझाने का, बेटा डू यू नो how does elephant look like? They have 4 very big legs and the legs are like poles, they are round, they have trunks and like that, they have very big ears. 3 दिन तक वो आप कोशिश करते रहिए लेक्चर बोर्ड में बच्चे को ये बताने का कि हाथी कैसा दिखता है। हम आपसे बताएंगे कि उसका कंसेप्ट हाथी का क्लियर नहीं होगा उस बच्चे का। 3 दिन के बाद फिर पूछिए कैसा हाथी दिखेगा, वो नहीं बता पाएगा। हाँ, आप क्या करना चाहिए, आपको छोटा सा हाथी का फोटो दिखा दीजिए। जैसे ही हाथी का फोटो दिखाएंगे बच्चा समझ, हाँ मैं समझ गया बाबा कि कैसे 3 दिन से आप इतना हमको बता रहे थे, यही चीज पहले दिन कर देते। अब हाथी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। पूछिए उससे लेग कैसा होता है, तुरंत बता देगा। ईयर कैसे होते हैं बता देगा। ट्रंक कैसे होते हैं बता देगा। साइज कैसा होता है बता देगा। कलर कैसा होता है बता देगा। तो ये जस्ट देखिए सर, ये जो पिक्चर है, ये मैप है, इसका पोटेंशियल देखिए, पावर देखिए, पोटेंशियल फॉर लर्निंग, आई मीन टू से फॉर इंपार्टिंग द लर्निंग देखिए कि एक पिक्चर आपने दिखाया, एंड दैट्स व्हाई ये चाइनीज प्रोवर्ब इज देयर, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। हम लोग कहते हैं कि एक पिक्चर दिखा दीजिए 1000 शब्दों से ज्यादा बेहतर है। तो जो पिताजी 3 दिन से एक्सप्लेन कर रहे थे और कॉन्सेप्ट लड़के का क्लियर नहीं हो रहा था, एक छोटा सा पिक्चर ने क्या कर दिया, 1 मिनट में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यही बात होती है सर, जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत से टीचर जो है ग्लोब की मदद लेते हैं, है ना। हमें अब लाख दिन भर बोलते रहिए कि दुनिया गोल होता है, कहाँ दुनिया लड़के को दिख रहा है कि गोल होता है कि चपटा होता है, क्या होता है पता ही नहीं चल रहा वो। लेकिन आपने ग्लोब दिखा दिया, बता दिया, देखिए साहब सन इधर है तो इधर रात होगा, इधर दिन होगा, तो 2 मिनट में उसका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाता है। So if you are using a prop, a map, a figure or PPT, I mean to say, while you are trying to explain any concept to the student, the memory retention या उसके समझने की क्षमता goes beyond 40 to 50%. Do you agree with this thing or not, sir? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अच्छा मेथड है और हम लोग सभी लोगों ने इसीलिए पीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया। या क्लासरूम में बहुत से टीचर देखते हैं अलग अलग प्रॉप्स लेके जाते हैं, जो भी उनको पढ़ाना होता है। किसी को पढ़ाना है दिन रात कैसे होता है, तो बॉल लेके चले गए, टॉर्च से उन्होंने मार के दिखाया, देखो बेटा इस स्पेक्ट्रम में दिन है, जहां ये बॉल घूमता हुआ तो देखिए धीरे धीरे, एंड सो दे कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जहां लड़के को बहुत अच्छे ढंग से समझ में चीजें आ जाती है। अब सर तीसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग। अच्छा, मैं सर दूसरे वाला केस में एक और एग्जांपल पहले दे दूं सो दैट के द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। आप सभी लोग जानते होंगे सर कि जो बायोलॉजी की पहले क्लास होती थी तो उसमें टीचर आते थे और बायोलॉजी की क्लास में सिर्फ एक एग्जांपल हमको पढ़ाना है, हाउ डज ए ह्यूमन हार्ट वर्क, या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे काम करता है, रक्त संचरण सिस्टम या संचरण प्रणाली कैसे काम करती है, ये पढ़ाना है। तो आप देखते होंगे जो बायोलॉजी के टीचर से दे वर वेरी गुड इन ड्रॉइंग ए पिक्चर इन द बोर्ड। तो वो 2-3 कलर का सर चौक लेके आते थे और बोर्ड में बड़ा अच्छा दिल यानी हार्ट का पिक्चर बनाते थे, फिर दिखाते दीज आर द आर्टरीज हैं, ये हैं, यहाँ पर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट चैम्बर में आता है, फिर यहाँ राइट चैम्बर से लंग्स में पंप हो जाता है, पंप में जाकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मिलता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है सर, लेफ्ट चैम्बर में, और वहां से फिर पूरी बॉडी में प्रवाहित होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये बोर्ड में सर पढ़ा के बताते थे लाल पीला हरा चौक से। डू यू रिमेम्बर दिस काइंड ऑफ थिंग और नॉट सर? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. है ना, ऐसा होता था और वो बड़ा फिर लड़के को समझ में आ जाता था। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ भाषण दें, व्याख्यान दें, उसके कंपैरिजन में अगर आप पिक्चर की मदद से, मैप की मदद से बताते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझना और उस चीज को याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल बताया। अब सर इसके बाद तीसरा जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था जो लोगों ने किया, बोला कि इफ यू आर टीचिंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ ए क्वालिटी वीडियो या वेरी गुड सिमुलेशन, उसके मदद से अगर आप पढ़ाते हैं, then it has been found that the memory retention goes beyond 70 to 80%। बोला कि 70 से 80% तक समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है और उसको याद भी रख पाता है। किसकी मदद से? अगर आपने टीचिंग करी हो वीडियो की मदद से, एक अच्छा वीडियो आपने उनको दिखा दिया तो बोला अच्छा, या सिमुलेशन दिखा दिया तो चीजों को समझना उससे भी ज्यादा आसान हो जाता है। यानी मैप जो आप बना रहे थे या टीचर जो हमारे अभी मैप बना रहे थे, हाउ डज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वर्क्स, इसका मैप बना के दिखा रहे थे या पिक्चर बना के दिखा रहे थे, उसकी जगह पे हम उनको एक सिमुलेशन देखा। सिमुलेशन का मतलब होता है वीडियो, एक वीडियो कि एक्चुअल में वो चीज हो कैसे रही है। वैसा अगर हमने दिखा दिया एक वीडियो तो
it has been found that the memory retention goes beyond 60. मैंने कहने का मतलब उस चीज को समझना और ग्रास्प करना स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है और रिकॉल करना भी आसान हो जाता है। होता है सर या नहीं होता है, बताएं सर मुझको आप। होता है सर। एग्जाम्पल बताते हैं सर इसके लिए। हम सभी लोगों ने देखिए सर क्या किया होगा कि हमने अभी एक टर्म यूज किया कि इफ यू आर टीचिंग विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी वीडियो, ये क्वालिटी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिएगा वीडियो तो बहुत से होते हैं, हमने आपने बहुत से मूवी देखे होंगे सर पिछले 10 साल में 20 साल में, उसमें से कुछ के तो नाम भी आपको याद नहीं होंगे। बहुत से मूवी होंगे, 100 मूवी अगर आपने देखा होगा तो आपको लगता है 80-80 के तो नाम भी याद नहीं होंगे कि कौन कौन सा मूवी है। हाँ, और 1-2 मूवी ऐसे हैं जिनके कुछ डायलॉग, सीन, सॉन्ग्स अभी तक आपको याद है, दो यू हैव सीन दैट मूवी 20 years बैक। हम एक एग्जांपल के लिए बोले, शोले बहुत से लोगों ने देखा होगा, या मूवी एक था सर, बहुत ही सुपर हिट मूवी थी, गब्बर सिंह वगैरह कोई थे उसमें, कुछ था, तो उसके बहुत से सीन के डायलॉग अभी भी आपको याद होंगे। जो फिल्म के लोग देखने वाले शौकीन है, मुगल आजम नाम की फिल्म थी, तो बहुत से सीन, डायलॉग्स उसके अभी भी आपको याद होंगे। या हम आपके हैं कौन, एक फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, उसके डायलॉग, सॉन्ग्स याद होंगे। उसके बाद अब बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी जिसका ना तो नाम याद है, ना सीन याद है, ना सॉन्ग याद है। क्यों ऐसा हुआ सर? ये बात ऐसी होती है नहीं होती, पहले बताइए सर, आपके रियल लाइफ में चीजें होती है। सर तो आप होती है। ऐसे जरा इसको एनालाइज करिए सर, ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन, ऐसा क्यों हुआ। ये 2-3 फिल्में थी जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सुपर हिट फिल्म। ये सुपर हिट फिल्म में क्या खास था जो 20 साल पहले की बातें हमको याद हैं, और उसके बाद हमने रिसेंट पास्ट में 5 साल में बहुत सारी फिल्में देखी, उसका नाम तक याद नहीं है। हुआ क्या ऐसा? इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए कोई भी डायरेक्टर है जो फिल्म बनाता है, अच्छा तो 2 तरह की फिल्में होती है कैटेगरी में सर, हम लोग कहते हैं आम जुबान में, एक को कहते हैं सुपर हिट फिल्म, एक को कहते हैं फ्लॉप फिल्म। तो जो फ्लॉप फिल्म होती है उसकी चीजें हमको याद नहीं रहती, देखते तो हम जरूर हैं लेकिन देखा, खत्म हो गया, भूल गया, याद नहीं रहा। जो सुपर हिट फिल्में हैं उनके सॉन्ग्स हैं या सीन्स हैं या बहुत सारे चीजें हमको याद रह जाती हैं। क्यों रहती हैं, जरा देखने की कोशिश करिए। यहीं पर हम लोग क्वालिटी वीडियो की बात कर रहे हैं सर। तो जो पहला वीडियो था वो जो बनाया, वीडियो का मतलब जो मूवी है वो भी एक वीडियो है ना, ऑडियो वीडियो विजुअल है। जो पहले कैटेगरी के मूवी थे, शोले है जिसका मुगल आजम की हम बात कर रहे थे, या शोले की बात कर रहे थे, या हम आपके हैं कौन की, जो भी फेमस फिल्में हैं, उसमें हुआ क्या कि द डायरेक्टर वाज सक्सेसफुल इन इन्वॉल्विंग द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स टुवर्ड्स द फिल्म ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ द, अगर 3 घंटे की फिल्म थी तो ड्यूरेशन ऑफ द पिक्चर। होता क्या है कि जब आप मूवी में जाते हैं उस तरह के फिल्म, तो इतने अच्छे ढंग से वो बनाया गया है कि वो आपके ध्यान को क्या करता है, अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है। यानी आप ध्यान मग्न होकर के पिक्चर को देखना शुरू करते हैं एंड यू बिकम पार्ट ऑफ दैट मूवी। आपको ऐसा लगता है कि हम भी उसके पार्ट हैं, और 3 घंटा कैसे गुजर जाता है आपको पता नहीं चलता है। और जब 3 घंटे के बाद आप निकलते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं, नहीं भाई बड़े अच्छी मूवी थी, फलाने ने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया था, बड़े अच्छे सॉन्ग्स थे, और बहुत खुश, आपको लगता है पैसा वसूल फिल्म था ये। आप जाके 10 आदमी से बोलते हैं कि नहीं साहब बहुत अच्छी मूवी थी, आप देखें इसको जाकर। दूसरी कैटेगरी की फिल्म क्या हुई, वहां पर आप जैसे अंदर गए, वो फिल्म किसी तरह से आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर पा रहा अपनी तरफ। वो क्या हुआ कि कुछ लगता कि कुछ उसमें चाहे तो स्टोरी लाइन में खराबी थी, या कुछ सिनेमेटोग्राफी में खराबी थी, कुछ भी था, दैट फिल्म फेल्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर टुवर्ड्स इटसेल्फ। 10 मिनट के आपको अंदर लगने लगता है कि खुजली, अरे क्या है पता नहीं, सरदर्द है, क्या निकल गया। आधे घंटे के अंदर आप हॉल से बाहर आ गए, बाहर किसी ने पूछा कहाँ गए, अरे बड़ा वाहियात फिल्म है, मत जाना उसको देखने के लिए। और उस तरह की फिल्म क्या हो जाती है सर, फ्लॉप हो जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है सर, वीडियो में देखिएगा, एक वीडियो की कैपेसिटी ऐसी है कि ड्यू टू एनी रीजन वो आपका ध्यान अपनी तरफ क्या कर रहा है सर, आकृष्ट कर लेता है, और 3 घंटा कैसे गुजरता आपको पता नहीं चलता। दूसरे कैटेगरी की फिल्म या वीडियो ने क्या कर पाई, वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने में क्या रहा सर, फेल हो गया। किसी भी रीजन से फेल हुआ, चाहे वो डायरेक्टर की गलती थी, एक्टर की गलती थी, स्टोरी लाइन की गलती थी, कुछ भी था, फेल हो गया। तो वो फिल्म आप 1.5 घंटे के अंदर बाहर जाते हैं, बोलते हैं सर बेकार फिल्म, बकवास फिल्म थी, और बाहर आकर के दूसरे कोई बोलते हैं मत जाना, गलती से मत जाना, उसमें सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है सर, पहले ये बताइए। होता है सर। ठीक है, इस फैक्ट को अपने ध्यान में रखें। अब हम लोग अपने फॉर्मल मोड ऑफ टीचिंग की तरफ वापस आते हैं, फिर हम यहीं पे बैक टू होंगे। एक एग्जांपल देते हैं सर, आप लोग जब, या हम लोग सब टीचर हैं, है ना, वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर लर्निंग प्रोसेस। हम लोग जो डेली में हमारे साथ होता है उससे हम कुछ सीखते हैं। तो आप जब क्लास में जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि क्लास में जब आप कुछ पढ़ा रहे हो तो फॉर स्मूथ लर्निंग इट इज एसेंशियल कि लड़का आपके तरफ अट्रैक्टिव होना चाहिए, लड़के का ध्यान आपके तरफ होना चाहिए। यू शुड बी कैपेबल एनफ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ ड्यूरिंग द
पीरियड ऑफ द लेक्चर। 10 मिनट का पीरियड हो, 20 मिनट का पीरियड हो, जो भी आप भाषण दे रहे हैं, उस वक्त तक आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि लड़के का ध्यान आप अपनी तरफ आकृष्ट करके रखें। अगर लड़के का ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट होगा, if the student is attentive towards yourself, then the teaching and learning process will be smooth or effective. Otherwise it will not be effective, though the student is present physically in the class. कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़का फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है, आप उसको खड़ा कर दिया, भाई लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला था बताओ, वो नहीं बता पाएगा। अब क्या हुआ, जबकि वो तो फिजिकली पता और अगले बेंच में बैठा हुआ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा उसको। हुआ क्या सर कि वो फिजिकली तो था प्रेजेंट, लेकिन वो आपकी तरफ अटेंटिव नहीं था। वो घर में अम्मा के बारे में सोच रहा था, किसी के बारे में सोच रहा था, कुछ और क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो उसका ध्यान कहीं और था, ध्यान आपके तरफ नहीं था। तो ध्यान नहीं था तो देखिए लास्ट सेंटेंस भी नहीं बता पा रहा हो, तो पूरी बात तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि स्मूथ टीचिंग एंड लर्निंग के लिए जरूरी है कि लड़के का ध्यान, लड़के का मतलब जो स्टूडेंट है या व्यूअर है, उसका ध्यान आपके तरफ होना चाहिए। यू शुड बी कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ। कभी कभी आप देखते हैं कि राजू खिड़की की तरफ देख रहा, तो आप बोलते हैं राजू खिड़की की तरफ क्या देख रहा। कहने का मतलब अगर फेस टू फेस ऑफ टीचिंग में हम लोग हैं तो हमको पता होता है लड़के के स्टूडेंट को देख करके, उसके हाव भाव को देख के पता चल जाता है कि इसका ध्यान मेरे तरफ है या नहीं, और नहीं है तो हम उसका ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। दैट इज द यू कैन से फ्रीडम इन केस ऑफ फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग। लेकिन सर अगर ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग की हम बात कर रहे हो तो हमको वो लिवरेज नहीं है, हमें वो आजादी नहीं है। आप में से कितने लोगों ने अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, कोई चाय पी रहा होगा, कोई अपने बच्चे से बातचीत कर रहा होगा, कोई बंद करके कहीं और चला भी गया होगा, इवन समबडी सिटिंग ओवर देयर, कोई दूसरा काम कर रहा है। कहने का मतलब वो हमारे लेक्चर की तरफ उसका ध्यान नहीं है, और अगर नहीं है तो ये फैक्ट है कि उसकी लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी, वो सीख नहीं पाएगा। डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट सर? इससे आप एग्री करते हैं नहीं? यस सर। तो ठीक है, ये तो हम लोग को डेली लाइफ में होता है। लेकिन सर अब हम लोग फिर कमिंग बैक टू अवर, बोलिएगा कि हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं अपने लेक्चर का, और वो लड़के को आपने दे दिया, और आप बोलते हैं कि वीडियो में क्वालिटी वीडियो हम उसको डिफाइन करते हैं जिसमें वो कैपेसिटी हो कि दैट वीडियो मस्ट बी कैपेबल इनफ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट पार्ट द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। 10 मिनट का वीडियो हो या 20 मिनट का वीडियो हो, उतने देर तक वो अपने लड़के का ध्यान, अपने व्यूअर का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कर सके, जैसा कि उन फिल्मों ने किया था, मुगले आजम ने किया था, या शोले ने किया था, या हम आपके हैं जो सुपरहिट फिल्में होती हैं, वो आपका ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करने में सफल होती हैं। उसी तरह का वीडियो आपको बनाना है। बोलिएगा ये बात तो आप ठीक बोलते हैं कि वीडियो, आप एक एग्जांपल देते हैं सर। आप आजकल सभी लोग आप जानते हैं घरों में ऐसा होता है, बच्चा रोता है, अम्मा उसको मोबाइल पकड़ा देती, छोटे बच्चे को जो अभी ABCD कुछ नहीं जानता है, जैसे ही मोबाइल पकड़ाया बच्चा हंसने लगेगा, खुश हो जाता है। उसके बाद वो उंगली के सहारे से क्या करता है, अपना यूट्यूब खोल लेता है, और यूट्यूब खोल करके वो कार्टून चैनल लगा लेता है। अच्छा, उसको आप देखते रहिए, उसको वॉच कीजिए। कार्टून चैनल लगाया, हमको आपको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको समझ में आ रहा, वो हंस भी रहा है, देखिए कुछ कर रहा है, उसके हाव भाव चेंज होते रहते हैं, और वो चुप हो गया, दूध नहीं मांगता। जैसे ही मोबाइल उससे लीजिए फिर रोना शुरू कर देगा, फिर दे दीजिए फिर ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो वीडियो जो है, जिसको देख रहा, कार्टून जिसको हम लोग बोलते हैं, कार्टून चैनल या कार्टून सीरीज जो भी है, दैट वीडियो हैज द कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसमें ये क्षमता है कि वो उसके ध्यान को आकृष्ट, जैसे ध्यान आकृष्ट किया बाकी चीजें भूल जाता है, वो फिर मगन होकर के देखना शुरू कर देता है बच्चा। देखा आपने सर, ये चीजें ऑब्जर्व की हैं या नहीं की हैं सर आप लोगों? यस सर। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो हम अब टीचिंग लर्निंग में भी चाहते हैं जो वीडियो हम बनाएं अपने सब्जेक्ट का वीडियो, वो ऐसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दैट मस्ट बी कैपेबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है। उस जब लड़का एक बार शुरू करे तो उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो तन्मय हो जाए, उसी में देखने में मगन हो जाए, हमारे वीडियो से उसका ध्यान ना हटे। और अगर ऐसा हो गया तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, लर्निंग इफेक्टिव होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लड़का ध्यान से सुनेगा तो जरूर सीखेगा। डू यू एग्री विद दिस प्रीपोजिशन और नॉट सर? इससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते? यस सर। लेकिन सर सवाल अब उठता है कि सर ये सब बातें आपके सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट वी आर टीचर, वी आर मास्टर ऑफ संस्कृत, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन हमको ये थोड़ी बताया गया है कि फिल्म कैसे बनाना है या फिल्म टाइप का वीडियो कैसे बनाना है। आप बोलते हैं मुगले आजम, शोले, कितना खर्चा हुआ था उसमें बनाने में उस पिक्चर को, आप उस तरह का बोलते हैं वीडियो बनाओ 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो हम तो उसके लिए ट्रेंड ही नहीं है। आई एम नॉट ट्रेंड एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, या इस काइंड को करने के लिए हम ट्रेंड नहीं, तो कौन बनाएगा? आपकी बात को और हमारी बात को सरकार ने भी समझा और गवर्नमेंट ने भी समझा इस बात को कि ठीक है, आवर टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड एनफ
फॉर दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने सर क्या किया, लेकिन वीडियो की महत्ता अपनी जगह है, आप इसकी महत्ता अपनी जगह सिद्ध कर दी थी मैंने सर, कि वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ाते हैं तो मेमोरी रिटेंशन कितना हो जाता है सर, मैंने आपको बताया था 70 to 80%, 80% से ज्यादा हो जाता है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है, तो बोले हाँ है, तो सरकार भी समझ रही थी इंपॉर्टेंस भी है, दूसरी तरफ टीचर का जो लिमिटेशन था वो भी समझ रही थी। तो उन्होंने ऐसा किया, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से उन्होंने करीब 4000 टीचर को इनवाइट किया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। टीचर का मतलब हम लोग, आप लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, वो इकोनॉमिक्स से थे, कुछ केमिस्ट्री के थे, कुछ फिजिक्स के थे, कुछ संस्कृत के थे, इस तरह से सभी लोगों को बुलाया चेन्नई के स्टूडियो में, मद्रास के एक स्टूडियो में बुलाया उन्होंने, और वहां उन टीचर्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। बोला आपको सर कुछ नहीं करना है, यू आर द स्टोरी टेलर, यू बेटर नो योर सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि आपको कैसे बच्चे को पढ़ाना है, आप सिर्फ बताइए अपना स्टोरी कि हमको ऐसे पढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट बताना है, और उसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी वीडियो बनाने में, वो हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगी। कैमरामैन था, एडिट करने वाला आदमी था, शॉर्ट जो सारे एडिटर में जरूरत पड़ती है जो भी हमको अभी डेवलपमेंट करने में, वो पूरी टीम, वीडियो डेवलपमेंट की पूरी टीम, यानी फिल्म मेकिंग की पूरी टीम उनको दी गई। अब बोला गया कि आप डायरेक्टर भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, जैसे जैसे बोलिएगा आपके डायरेक्शन में वो वीडियो बन जाएगा, एंड दैट वीडियो विल बी पुट ऑन द इंटरनेट फॉर एनीबडीज यूज। उसको सब वीडियो, तो सर वहां पर 4000 टीचर को बुलाया गया, उनको प्रोवाइड की गई टेक्निकल फैसिलिटेशंस, और विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निकल पीपल the teachers have developed more than 30,000 videos on various topic। 30,000 टॉपिक पर, टॉपिक का मतलब एक एक टॉपिक की हम बात करें, टॉपिक आप समझ रहे हो, एक एक टॉपिक पे 30,000 टॉपिक पे उन्होंने वीडियो लेक्चर बनाए, और बनाने के बाद सर उसको नेट पे रख दिया, नेट पे रख एक रिपोजिटरी में रख दिया, जिसको रिपोजिटरी बोलते हैं। एंड नेट पे रखने का मतलब है कि दैट वाज फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल, एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट वीडियो फॉर टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी जाए, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे जा करके वो वीडियो को देख सकता है, और अगर कुछ सीखना चाहे, उससे पढ़ना चाहे तो आगे पढ़ सकता है और सीख सकता है। इसी पहल को, दिस इनिशिएटिव इज नोन एज ईपीजी पाठशाला, इसी को हम लोग बोलते हैं सर ईपीजी पाठशाला था। ये पहला इनिशिएटिव था जहां पर क्या किया गया, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल पीपल द टीचर्स हैव डेवलप्ड 30,000 video lectures and they have uploaded it on the internet, and that repository जहां पर ये 30,000 वीडियो रखे हुए हैं, उसको हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन माने ओपन फॉर ऑल है, एजुकेशनल रिसोर्स है, इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी सर, ये नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, जाइए और अपने मन की चीज देखिए, और इसको हम लोग कहते हैं सर ईपीजी पाठशाला। यहाँ तक सर क्लियर है आपको या नहीं है सर? Yes, Yes, sir. अच्छा, अब हम आपको क्या करते हैं, ईपीजी पाठशाला पहले दिखा देते हैं कि कैसा होता है। इसके लिए सर हम जा रहे हैं अपने, सॉरी, हमारा गूगल का स्क्रीन दिख रहा हो सर, बताइएगा सर अगर गूगल का स्क्रीन दिख रहा हो। जी सर। यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे आप ईपीजी पाठशाला, है ना, ईपीजी पाठशाला देखिए आ गया सर, देख पा रहे हैं सर, ईपीजी पाठशाला लिखेंगे, कुछ याद रखना नहीं है आपको, ईपीजी पाठशाला का पहला लिंक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी सर। इसको क्लिक करें सर, जैसे ही क्लिक करेंगे हम देखिए ये जो ईपीजी पाठशाला का आप देख रहे हैं, ये पहला होम पेज कहलाता है। देखिए सर, वेलकम टू ईपीजी पाठशाला, देखिए आगे सर, ए गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। राइट साइड पे देखिएगा सर, अपर हैंड पे देखिए लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट, देख पा रहे हैं सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने बताया था आपको। अब देखिए सर इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिए ई अध्ययन के नाम से ई बुक्स हैं, ई बुक्स का मतलब बहुत सारी किताबों को डिजिटाइज कर करके पीडीएफ फॉर्म में रख दिया गया है, ताकि आप जाइए कोई भी किताब आप यहाँ से डाउनलोड करिए, पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे कोर्सेज अभी है, ऑनलाइन कोर्सेज, जिसके हम लोग बारे में बात करेंगे सर, अभी यूजीसी के ऑनलाइन कोर्सेज बुक्स की बात करेंगे। और देखिए सर, हम जो आपसे बात कर रहे थे कि मोर देन 30, बात करने के बाद सर आप क्या करें, अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिएगा सर, है ना, वरना खुला रहने से दिक्कत होती है, म्यूट कर लीजिएगा तो आसानी, जब भी बोलना हो आप अनम्यूट कर लीजिए। खैर, हम लोग बात कर रहे थे सर कि यहाँ पर जो टीचर्स ने, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर थे, 70 सब्जेक्ट के टीचर थे सर, 4000 टीचर्स, दे बिलोंग टू 70 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उन लोगों ने सर जा करके अलग अलग टॉपिक पर क्या किया, लेक्चर बनाए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सर, पहला देख पा रहे हैं आप एडल्ट एजुकेशन, तो एडल्ट एजुकेशन के टीचर्स थे, इन लोगों ने 190 टॉपिक पर लेक्चर बनाया, 190 टॉपिक पे लेक्चर मौजूद है जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी तरह से आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कंप्यूटर साइंस पे देखिए, तो कंप्यूटर साइंस के टीचर ने 633 मॉड्यूल पे बनाया। इकोनॉमिक्स के लोगों ने, इकोनॉमिक्स देख पा रहे होंगे सर, देख पा रहे हैं सर, हमारा स्क्रीन विजिबल है तो बताइएगा सर प्लीज। जी सर, विजिबल। इकोनॉमिक्स के लोगों ने 567 5, 6, 7 टॉपिक बनाया। इसी तरह से इंग्लिश में 560 टॉपिक। आगे देखिए सर, इन्वायरमेंटल साइंस पे देखिए 530 एंड सो।
फूड एंड न्यूट्रिशन पे देखिए 602 टॉपिक पे मौजूद है। इसी तरह से होम साइंस पे 640 टॉपिक पे मौजूद है। मैनेजमेंट एमबीए पे देखिए 599 टॉपिक पे मौजूद है, एंड सो सर। अब बहुत से टॉपिक पे लिखे हुए हैं। बोलिए सर किसी एक को देखना चाहते हैं, लड़का कैसे देख पाएंगे? हम देखना चाहते हैं जी टीचर, चलिए सर कहीं भी देख लीजिए। मान लीजिए कि हम केमिस्ट्री पे देखना चाहते हैं, या किसी भी चीज पे आ जाइए, इन्वायरमेंटल साइंस पे आ जाइए, कहीं पे आ जाइए, इन्वायरमेंटल साइंस पे देखिए सर। तो देखिए सर सब्जेक्ट का नाम आ गया इन्वायरमेंटल साइंस। हर सब्जेक्ट में सर कुछ पेपर्स होते हैं, पेपर के नाम होते हैं। देखिए पेपर का नाम है इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो देखिए सर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे कितने लेक्चर है सर, देख पाइए यहाँ पर 35 लेक्चर मौजूद है सर, ठीक है ना सर। इसी तरह से अब वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सो एंड सो। चलिए बोलिए सर दिखाइए तो सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे क्या है। तो देखिए हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे 8 लेक्चर दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं सर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे 8 है, बोलो कहाँ दिखेंगे? यहाँ दिखेंगे। देखिए सर यहाँ दिख रहे हैं, देखिए ये 8 लेक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे हैं सर इन्वायरमेंटल। जी सर। चलिए मान लीजिए कि बोलिए सर नहीं हमको आप जो देखना है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पे दिखाइए, या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। देखिए इन्वायरमेंट मैंने बोले 34 टॉपिक्स पे है, 34 टॉपिक्स दिखाइए सर। देखिए यहाँ 34 टॉपिक्स पे लेक्चर मौजूद है, 34 लेक्चर देख पा रहे हैं सर, M34 देख रहे हैं? जी सर। अच्छा अब बोलिएगा सर किसी एक पे दिखाइए तो कैसा दिखता है। मान लीजिए कि चलिए हम वाटर पोल्यूशन पे आ जाते हैं, कहाँ पर था, कोई भी देख लीजिए, कोई नहीं है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे अब देखिए सर हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए एरोसॉल सिस्टम एंड न्यूक्लिएशन फेनोमेना, एक ये होगा, ये जो भी होगा, या फिल्टर मीडिया सिलेक्शन, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए इस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो देखिए सर सॉरी इन्वायरमेंटल साइंस, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। इस पेपर के अंदर जो मॉड्यूल है वो रिफ्लेक्ट होगा ना? हाँ वही तो दिखा रहे, देखिए 36 मॉड्यूल है ना यहाँ पे, 36 देख पा रही है, और हाँ, यहाँ पे देखिए वो 36 मॉड्यूल है, देखिए पूरे 36 तक है, 36 है ना। ठीक है ठीक है। अब इसमें किसी पे देखना, मान लीजिए एयर पोल्यूशन पे देखना है, तो हमने एयर पोल्यूशन को क्लिक किया। कोई मॉड्यूल देखने के लिए हम जस्ट आपको बता रहे हैं, ये नेट पे अवेलेबल है, रात में आप घर में देखिएगा आराम से, कोई सा नहीं, फ्रीली अवेलेबल है। तो अब देखिए सर यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी एयर पोल्यूशन, तो देखिए सर यहाँ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको दिख रहा होगा, इन्वायरमेंटल साइंस है, उस पर देखिए एयर पोल्यूशन पे ये टॉपिक है, देख पा रहे हैं सर, स्क्रीन देख पा रहे होंगे हमारा, तो बताइएगा यहाँ। जी सर। अच्छा अब इन लोगों ने डेवलप किया है, उनके डेवलपमेंट के टीम के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर ये पूरा नोट्स एयर पोल्यूशन पे, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया फॉर दिस एंड दैट, ये पूरी बातें सर यहाँ पे लिखी हुई हैं नोट्स के फॉर्म में, ताकि लड़का चाहे अगर रीडिंग करना पढ़ना तो नोट्स की तरह ही पढ़ सकता है। ये अवेलेबल है, इसको प्रिंट कर ले, डाउनलोड कर ले, सब हो जाएगा। तो लड़का को एक नोट्स मिल गया, टीचिंग मटेरियल मिल गया सर, किस चीज पर? एयर पोल्यूशन। बोलिएगा सर ये तो आप नोट्स की बात थोड़ी कर रहे थे, आप तो बोल रहे थे वीडियो कहाँ मिलेगा, मतलब आते हैं सर। तो इस नोट्स को सर हम लोग ई टेक्स्ट बोलते हैं, अभी हम लोग यूज करेंगे ये सब टर्म, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर। ई टेक्स्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बोलते हैं, मैंने वैसा टेक्स्ट जिसको लड़का प्रिंट कर सके या डाउनलोड कर सके और हिज और हर फ्यूचर रेफरेंस के लिए कर सके, तो पढ़ने के लिए कर सकता है, इसीलिए ई टेक्स्ट बोलते हैं सर। अच्छा लर्न मोर, लड़का इस चीज में और जानना चाहता है, स्टूडेंट, लड़का से मेरा मुराद है स्टूडेंट, तो लर्न मोर में देखिएगा कि यहाँ पर और भी लिखे हुए रेफरेंसेस वगैरह, लड़का देख सकता है कि बहुत सारे रेफरेंसेस के नाम देखिए दिखे हुए सर, क्या और पढ़ना चाहते हैं तो इन सब रेफरेंसेस को आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फ्यूचर रेफरेंस। सेल्फ लर्निंग देखिए सर, सेल्फ लर्निंग का मतलब यहाँ पर अब वो वीडियो है जिस वीडियो की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो अब देखिए सर ये वीडियो है, 35 मिनट का वीडियो है, देख पा रहे हैं वीडियो सर, बताइएगा। जी 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 सर। वीडियो विजिबल है आपको? जी सर। ठीक जी सर। हम जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड प्ले करेंगे, का टाइम उतना नहीं लगाना चाहते हैं, आप घर में देखिएगा, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे आप देखते हैं। देखिए सर ये प्रोफेसर साहब है, ये पढ़ा रहे हैं व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, कैसे है अपना पढ़ा। तो ये जितने भी चीजें हैं, यहाँ पर देखिए जितनी भी चीजें हैं, ये मैप है, ये क्वेश्चन है, ये सब कम करके दिया है इसको टेक्निकल प्रोफेशनल में, है ना। सो आई मीन टू से इस तरह की वीडियो जो है सर यहाँ अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरह से आप देखेंगे, तो कहीं पे बहुत अच्छे सिमुलेशन मिलेंगे, कभी कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो इस सब की मदद से इस तरह का वीडियो लेक्चर बना करके यहाँ रख दिया गया है, ताकि इसको स्टूडेंट या टीचर
अपने टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए क्या कर सकें, यूज कर सकें और इससे बेनिफिट हो सके। इसी को कहते हैं सर ईपीजी पाठशाला। और ये एग्जाम्पल है किसका, OER का, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। यहाँ तक सब ठीक हो तो आगे बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। यस सर। Yes. यस सर। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, इसमें तो बहुत सारा 70 सब्जेक्ट लिखा हुआ है और हमारा तो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा है। मान लीजिए मेडिकल साइंस के आदमी, हमको मेडिकल का कुछ दिख नहीं रहा, कुछ कैसे बनाएंगे? तो हमने बताया तो सर कि ये एक OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स बहुत होते हैं, हमने ईपीजी पाठशाला बोला, उसमें से एक है। तो बोलिएगा और अनेक कहाँ पर दिखते हैं? तो अनेक भी हम लोगों ने क्या किया था, कोविड के टाइम पे सर सभी लोग अपने अपने घरों में थे, तो अब उनको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कहीं मिल सके, तो हम लोगों ने कहा था कि कंपाइल किया एक सारी लिस्ट, OER की लिस्ट, और कंपाइल करके सारे स्टूडेंट एंड टीचर के साथ हम लोगों ने दे दिया था कि आप जाइए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल यहाँ से आप खुद भी ले सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आप AMU के वेबसाइट में जाइएगा सर, amu.ac.in लिखना है। AMU बहुत आसान है सर, देख पा रहे हैं, amu.ac.in, ठीक है सर, एम आई? जी सर। तो देखिए सर बीच में देखिएगा स्टूडेंट सर्विसेज लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं सर, स्टूडेंट सर्विसेज, ठीक है? जी सर, जी सर। जी सर। उसको क्लिक करेंगे तो देखिए सेकंड रो में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में थर्ड लास्ट, ओपन एक्सेस एंड ओपन लर्निंग रिसोर्सेज। इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा रिसोर्स देखिए सर आ गया। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये पूरा रिसोर्स यहाँ पर देखिए मौजूद है, ओपन लर्निंग रिसोर्सेज, देख रहे हैं सर? जी सर। लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस लर्निंग रिसोर्सेज। हम जो बात कर रहे थे अभी ईपीजी पाठशाला का, तो 19 नंबर पे देखिए सर, ये 19 नंबर पर ईपीजी पाठशाला है, अगर आप देख पा रहे हो ईपीजी पाठशाला 19 नंबर पे, देख पा रहे हैं सर? जी सर। जी सर। उसका लिंक है, इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो हम उसी वेबसाइट पे चले जाए। तो ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ माने रिसोर्सेज हैं। जैसे देखिए सबसे पहला लिखा हुआ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, उसका हमने लिंक भी दिया, उसको क्लिक करेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचा देगा। वहां बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मौजूद है, ओपन का मतलब फ्रीली अवेलेबल। दूसरा स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे सर। इसको क्लिक करेंगे स्वयं के, वहां पर आप देखिएगा बहुत सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, जाके आप सीख सकते हैं। NKN कहलाता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। NPTEL, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा सर, NPTEL। तो NPTEL का ये साइट दिया हुआ है जहां पर थाउजेंड ऑफ कोर्सेज आर देयर रिलेटेड टू बीटेक एंड एमटेक। आई मीन टू से, आप देखिए इसमें मैंने बहुत सारे 8-10 पेज में सारे रिसोर्सेज हम लोगों ने कंपाइल करके रख दिए हैं, जिसमें स्कूल लेवल का भी है, देख पा रहे हैं सर यहाँ, ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, है ना? ये थीसिस एंड डिसीजन यानी रिसर्च लेवल के बच्चों के लिए भी है, और यूजी पीजी के बच्चों के लिए भी है, ई जर्नल्स में बहुत सारे कैटेगरी में लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आप जाके सर यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड OER देखना है कि कौन कौन सा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। ये बात यहाँ तक क्लियर है सर? तो आगे बढ़े। जी सर। ठीक है सर। तो बोलेगा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि ये OER हो गया। अच्छा अब आइए थोड़ा सा इस वीडियो की बात करते हैं। मान लीजिए सर कि एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और देखने के दौरान उसके मन में एक सवाल आया कि ये थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता है, वहां पर उसके मन में एक क्वेरी आई। अब अगर क्वेरी का जवाब लेकिन यहाँ पर देने वाला सर कोई होता नहीं है, क्योंकि ये तो एक वीडियो बना हुआ है और वहां रखा हुआ है, अब तो ना टीचर है ना स्टूडेंट वहां को है नहीं। आप वीडियो जाइए देखिए, खुद से समझिए, यानी सेल्फ लर्निंग है ये। इसका नाम भी लिखा हुआ था वीडियो में, आप देखते होंगे सर कि सेल्फ लर्निंग लिखा हुआ है, देख पा रहे थे सर यहाँ पर? अगर हम लोग बात करें इसकी सेल्फ लर्निंग, देखिए सर ये सेल्फ लर्निंग, देख रहे हैं इस वीडियो का नाम क्या है सर? सेल्फ लर्निंग। हाँ, इसको क्लिक करें तो सेल्फ लर्निंग वीडियो आ जाएगा। यहाँ पर मैडम जो है अपना पढ़ा रही होंगी। तो विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी चीजों के हेल्प की मदद से, वीडियो है, मैप्स हैं, फिगर्स हैं, उसके मदद से द मैडम इज ट्राइंग टू या द टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक। लेकिन मान लीजिए कि इसमें लड़के को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो देयर इज नो हैंड होल्डिंग सपोर्ट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट इन दिस केस। इसमें कोई भी सर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जी सर।
हैंड होल्डिंग सपोर्ट का मतलब अगर लड़के के मन में कोई क्वेरी आया, सवाल आया, उसको बताने वाला। और अगर एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ चीजें उसमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लड़के का इंटरेस्ट उस वीडियो में बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? क्या नहीं बाकी नहीं रहेगा। और अगर बाकी नहीं रहेगा तो वो बाकी वीडियो नहीं देखेगा, और बाकी वीडियो नहीं देखा तो उसकी टीचिंग एंड लर्निंग या लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं होगा, सीख नहीं पाएगा। तो यानी हमारी सारी मेहनत क्या चली गई सर? बेकार गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बोलिएगा सर, अच्छा ये हम लोग जब समझ रहे थे इन बातों को, तो गवर्नमेंट भी समझ रही थी इन सब चीजों को कि हाँ ये प्रॉब्लम इसमें है कि लड़का अगर वीडियो देख रहा है और उसको बीच में कोई सवाल आई, उसके मन में कोई क्वेरी आया, सो देयर इज नोबडी प्रेजेंट टू एड्रेस द क्वेरी ऑफ दिस। अगर उसको तुरंत क्वेरी एड्रेस कर देता तो आगे वो मैंने क्या होता, सुन पाता, आगे देख पाता। आप है ना इस तरह से वो कहानी कह रहे होते बच्चों को, आप कहानी अगर मोनोलॉग वे में कहते जाइए तो देखिए कि बच्चा सो जाता है, लेकिन आप उसको जगा के रखिए तो दादा ये कैसे हुआ, अंकल ये कैसे हुआ, और उसके सवाल का आप जवाब देते रहिए, तो उसको क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी ठीक रहती है, सीखता है भी वो ज्यादा बच्चा। लेकिन अगर उसने कोई सवाल किया और कोई बताने वाला नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी उस चीज से क्या होता है सर, खत्म हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ दिस OER वीडियोस एज वेल। यहाँ पर देयर इज नो हैंड होल्डिंग सपोर्ट अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, देयर इज नोबडी टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट, एंड हेंस the students interest in these videos diminishes with time। माने वो कम होने लगता है सर, उसका इंटरेस्ट कम हुआ, जब इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर लर्निंग स्मूथ नहीं होगी। इस कमी को, अच्छा दूसरा और क्या था कि देयर इज नो सॉर्ट ऑफ इंकरेजमेंट इसमें, है ना। देखिए ना बच्चा क्या होता है कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो स्कूल से ही हम लोगों ने उसकी परवरिश ऐसे की है, उसका मैंने लालन पालन इस तरह से किया है कि छोटा सा अच्छा काम करता है तो हम उसको कोई छोटा सा प्राइज देते हैं, कभी चॉकलेट दे देते हैं, कभी छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, कुछ करते हैं, इनकरेज करते हैं। यहाँ पर देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ इनकरेज। उसने 10 वीडियो भी देख लिया, सब समझ गया, लेकिन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का मतलब इनकरेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है सर यहाँ पर। तो इनकरेज अगर नहीं कर रहे हैं आप स्टूडेंट को, तब भी वो बोलेगा छोड़ो इसमें कुछ होता नहीं, कितना सीखता रहेगा। लेकिन आप हर वीडियो के बाद उसको एक सर्टिफिकेट देते, कुछ एक मार्क्स दे देते, तो उसके लिए इनकरेजमेंट रहता है ना। आप देखते हो बहुत से गेम में बच्चे, मेरा बाबा 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, कुछ नहीं होता है, वो पॉइंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक में, उसको थोड़ी ना पैसा मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, लेकिन वो खुश हो रहा है कि बाबा हमने इतना अर्न कर लिया। तो इनकरेजमेंट है, इनकरेजमेंट मस्ट बी देयर इन एनी फॉर्म। ये दोनों चीजें सर लैकिंग थी इसमें OER में, ना तो कोई इनकरेजमेंट का प्रोविजन है इसमें और ना हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। तो इसी कमी को सर दूर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक नया प्रयास किया जिसको हम लोग बोलते हैं मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोलते हैं सर। और मूक्स में कोशिश की गई कि सबसे पहला कोशिश तो ये हुआ कि अगर मूक्स जो है कि वीडियो लड़का देख रहा है और उसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो देयर इज प्रोविजन नाउ फॉर हैंड होल्डिंग सपोर्ट। वो अपना क्वेश्चन लिख सकता है, बता सकता है, एंड देयर आर टीचर्स अवेलेबल टू आंसर द टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट। तो बोला हाँ पहली बात तो इसमें सॉल्व हो गई सर कि अगर लड़के की कोई क्वेरी है पूछेगा तो देयर इज सम मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि वहां नहीं था। मैकेनिज्म है, चाहे तो ऑनलाइन टीचर प्रेजेंट होकर उसको बता देगा या उसने कुछ क्वेश्चन लिख दिया डिस्कशन फोरम में, उसका आंसर दे देगा, जवाब दे देगा। आई मीन टू से द स्टूडेंट इज गेटिंग देयर क्वेरीज एड्रेस्ड, तो उसका इंटरेस्ट वीडियो में बना रहेगा। ठीक है सर, मूक्स में ये प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास ये हुआ कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये कोर्स अगर पूरा सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेता हो तो देयर इज ए प्रोविजन फॉर ए सर्टिफिकेशन। 4 क्रेडिट का कोर्स आपने कर लिया, आपको ये डिग्री या आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरह का इंकरेजमेंट भी है। तो लड़का यहाँ खुश होता है कि अरे हमने 4 कोर्स किए, 5 कोर्स किए, देखो हमारे पास 5 सर्टिफिकेट है। तो देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंकरेजिंग द स्टूडेंट, यानी इंसेंटिव है किसी ना किसी फॉर्म पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उसको है ना, वी आर providing them the encouragement in forms of certain incentives, that may be the certificate or anything else or marks, ये जो भी दे रहे हैं आप। तो ये भी हुआ। तो जो दोनों कमियां वहां पाई गई थी, इन दोनों को यहाँ पर दूर करने की कोशिश की। कौन कौन सी कमी थी सर वो OER में जो कि यहाँ दूर किया गया? पहला क्या था सर कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी यहाँ पर है। और दूसरा था सर कि कोई इंकरेजमेंट है, तो यहाँ सर्टिफिकेशन का भी प्रोविजन है। दूसरी और क्या बात, तीसरी बात इसमें है कि वहां पर हमने आपसे बताया कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है, ये लेक्चर किसमें है सर? डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर है OER में। यहां पर क्या है सर, मूक्स के केस में जो एक सिलेबस आप पढ़ाते हैं, एक सेमेस्टर में पढ़ाते होंगे ना कोई कोर्स आप लोग पढ़ाते होंगे एक सिलेबस में। एक सिलेबस की बात कर रहा हूं, एक सिलेबस, एक कोर्स, एक पेपर। तो उस पेपर में क्या होता है सर,
वो पेपर मतलब 100 नंबर का पेपर होता है फाइनली, उसमें 15, 20, 25 टॉपिक होते हैं या नहीं होते हैं सर उस सिलेबस में? यस सर। जी सर। हाँ, और इसमें जो मूक्स में होता है एक टॉपिक पे नहीं है, उस सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे लेक्चर मौजूद हैं, कंप्लीट कोर्स पे मौजूद है, यानी ऑल द टॉपिक्स ऑफ दैट सिलेबस इज कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जी सर। तो अगर उस सिलेबस में मान लीजिए कि 20 टॉपिक है, तो 20 टॉपिक पर वीडियो लेक्चर मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर, वहां प्रोविजन है कि हर वीक में आपका एक वीकली टेस्ट होगा, जिसको इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं या कंटिन्यूअस असेसमेंट बोलते हैं, जो भी आप बोल लीजिए। तो हर वीक, मान लीजिए 12 वीक, एक सेमेस्टर जो इनका होता है वो 12 वीक का होता है, तो हर वीक के एंड में टेस्ट होता है, तो 12 टेस्ट हो जाएंगे इनके बच्चे के, जो कि इंटरनल टेस्ट कहलाता है या कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी 12 हफ्ते के बाद उनका एक फाइनल एग्जाम भी होगा, जिसमें उसने पूरी बात जो पढ़ी है उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइनल एग्जाम होगा। वो फाइनल एग्जाम भी पास कर जाता है, इंटरनल असेसमेंट में भी पास कर जाता है, देन वी विल गिव देम ए सर्टिफिकेट कि इस लड़के ने 70%, 60% जो भी मार्क्स उसके आए होंगे वो मार्क्स उनको दिया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन OER एंड मूक्स सर। इज इट क्लियर सर? यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. यस यस सर। सर। अच्छा, तो आप बोलिएगा ठीक है सर, ये मूक्स भी समझ में आ गया कि मूक्स क्या होता है। तो जैसे आपने अभी हमको दिखाया था EPG पाठशाला का साइट, मूक्स का भी साइट दिखाई दीजिए। देखिए मूक्स तो यहीं पे दिख रहा है ना, UGC मूक्स देख पा रहे हैं? जी जी। जी सर। UGC मूक्स देख पा रहे हैं सर? वर्टिकल ऑफ स्वयं, जी। Yes sir. इसको क्लिक करिए, देखिए कहाँ जाते हैं। तो खैर ये अभी कहीं ले नहीं जा रहा, हम लोग आ जाइए यहाँ पर, गूगल पे आइए सर, और यहाँ स्वयं लिखिएगा सर। क्या लिखेंगे सर? स्वयं। स्वयं। जैसे ही स्वयं लिखेंगे तो देखिए स्वयं सेंट्रल आए। स्वयं क्या है पहले इसको समझिए सर। स्वयं एक नेटवर्क पे जो है एक प्लेटफॉर्म का नाम है, इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने कोर्सेज अपलोड करते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स के टीचर हैं, एक फिजिक्स का पूरा कोर्स आपने बनाया और अपलोड कर दिया। हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, हमने केमिस्ट्री का कर दिया। हम कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स अपलोड कर दिया। और ये सारे कोर्सेज वहां फ्रीली अवेलेबल होंगे फॉर एनीबॉडी टू डू। वो चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस मेकर हो, कोई भी हो, वो उस कोर्स को अपने कन्वीनियंट के मुताबिक अपने इंटरेस्ट के कोर्स को वहां से चुन सकते हैं और वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स, द पार्टिसिपेंट विल बी अवॉर्डेड ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट एज वेल। ठीक है सर, समझ में आ रही बात? Yes sir. जी सर। तो यहाँ पर देखिए सर, राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे कुछ फिगर वगैरह है, एक मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए सर, NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देख पा रहे हैं? Yes sir. चला गया, ये आप अब कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा सर। देख पा रहे हैं सर, ये सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं? Yes यस sir. सर। स्क्रीन विजिबल है, देखिए लिखा Yes, हुआ है sir. NPTEL है। तो जो भी संस्था से आप करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, स्वयं से करेंगे, तो ये लिखा है स्वयं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सुपर्णा पद्मा मित्रा हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोर्स का नाम है सर, पूरा कोर्स कंप्लीट किया विद कंसोलिडेटेड स्कोर ऑफ 69%। सर जरा बताइएगा विजिबल है या नहीं, हमको थोड़ा सा बताइए। Sir है. सर विजिबल है। हाँ देखिए सर, ऑनलाइन असाइनमेंट देखिए, ऑनलाइन जो इनका ऑनलाइन असाइनमेंट का मतलब जो वीकली हुआ था, इसमें इनको नंबर आया है 21/25, 21.13, यानी 21/25। अब फाइनल एग्जाम, प्रॉक्टेड एग्जाम हुआ था 75 नंबर का, 48/75 आया है। तो इनको जो है टोटल जो भी मार्क्स आए 69% मार्क्स आए। देखिए यहाँ सभी लोग के साइन है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट भी इनको मिलता है। और ये सर्टिफिकेट आप अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अगर देंगे, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन क्या करेगा, आपके ग्रेड शीट में चढ़ा देगा कि इस बच्चे ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स किया है 4 क्रेडिट का, 69% मार्क्स हैं, उसमें लिख देगा। तो आपके ग्रेड शीट में जो 4 कोर्सेज आपने अपने इंस्टीट्यूट से किए हैं, अपने कॉलेज से, वो भी लिखे होंगे, और 5वां ये लिखा होगा। एम आई क्लियर सर कि नहीं? Yes sir. यस सर। ये देखिए नीचे स्वयं देख पा रहे हैं, इसी सर्टिफिकेट के नीचे स्वयं लिखा हुआ, गौर कर रहे हैं जी। आप क्या नहीं कर पा रहे, देखिए है ना। तो ये स्वयं का सर्टिफिकेट है। कहने का मतलब इसको आपके कंट्रोलर डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने करके लाया, सर्टिफिकेट है बाज़ाब्ता, है ना, और इसको दिया गया है, जो भी हो। ये खैर एग्जांपल के लिए हम लोग आया था, तो बात करते हैं हम लोग। सर ये इस वक्त यहाँ पे थे, आपको याद होगा, स्वयं लिख करके आए थे, तो स्वयं सेंट्रल पहला लिंक देख पा रहे हैं सर? जी. हाँ, इसको क्लिक करिए तो स्वयं, ये स्वयं का वेबसाइट है। जैसे EPG पाठशाला का वेबसाइट था, वैसे ही देखिए सर, ये स्वयं के वेबसाइट में हम लोग आ गए, होम पेज में। ऊपर देखिएगा सर, अबाउट स्वयं लिखा हुआ है, फिर ऑल कोर्सेज लिखे हुए हैं, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर देख पा रहे हैं सर। ऊपर टाइप की बात कर रहे हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे देखिएगा, यहाँ बात कर रहे हैं। यस सर। लोकल चैप्टर की बात कर रहे हैं, स्वयं प्लस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सर हम लोग
कि स्वयं में देखिए सर कुछ लिखा हुआ, टोटल कोर्सेज देखिए यहाँ लिखा हुआ, ऑन गोइंग कोर्सेज कितना है, क्या है, ऑनलाइन इनरोलमेंट कितना हो चुका है, ये सब स्टैटिस्टिक है। मेन चीज जो हम आपसे बताना चाह रहे हैं ये देखिए, partnered with top institution to produce best quality education content for free। जितनी बातें मैं आपसे कह रहा था कि क्वालिटी कंटेंट होता है यहाँ पर, कंटेंट यानी वीडियो अगर ऐसे हैं जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब एक बार अगर लगा देखना शुरू करे तो इसको अंत तक देखेगा, तो अंत तक देखेगा यानी उसमें इनग्रॉस हो जाएगा, उसमें देखने में तन्मय हो जाएगा, है ना, तल्लीन हो जाएगा। अगर तल्लीन हो गया, उसका ध्यान उसमें चला गया, तो उसकी लर्निंग या लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगी या नहीं होगी सर, ये बताइए। होगी। होगी। तो ये देखिए सर, पहला सेंटेंस क्या बोलता है कि पार्टनर विद टॉप, बोले कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है सर, तो देखिए एआईसीटी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, एआईसीटी, सीईसी, इग्नू, आईआईएम बैंगलोर। आईएनआई का मतलब होता है सर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत से इंस्टीट्यूट है जिनको दे रखा है ये स्टेटस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उसमें एएमयू, बीएचयू इस तरह की संस्थाएं हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। तो एनसीईआरटी जो स्कूल लेवल का कोर्स बनाती है, एनआईओएस, एनआईटीटीआर ये टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्स बनाती है, एनपीटीएल और यूजीसी, इनके मदद से यूजीसी स्वयं जो है अपने कोर्सेज बनवाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, बीटेक या एमटेक के कोर्स बनाने होंगे टेक्नोलॉजी के, तो वो सारा काम किसके तहत करवाती है, एनपीटीएल को दे रखा है, एनपीटीएल। इसी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स अगर बनवाना है, जैसे ना एफडीपी होता है बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च इनको दे रखा है, हाँ एनआईटीआर को दे रखा है। इसी तरह से अगर मास्टर लेवल का नॉन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कोर्स तो सब एनपीटीएल बनाती है, नॉन टेक्नोलॉजी जैसे एमए इंग्लिश या एमए इकोनॉमिक्स या एमए हिस्ट्री का कोर्स बनाना है, तो उसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सर, यूजीसी। इसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल का अगर बनाना है आपको, है ना, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिंदी, बीए संस्कृत, बीए केमिस्ट्री, तो ये सीईसी नाम की एक संस्था है वो करती है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स आपको बनाना है तो ये कोऑर्डिनेशन किसको दे दिया गया है सर, इग्नू को दिया गया है, आपके थ्रू होगा। मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज किसके थ्रू बनेंगे सर, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, आईआईएम बैंगलोर के थ्रू बनते हैं। तो इसी तरह से हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के कोई भी कोर्स बनाने हो तो वो दे दिया गया है एएमयू को और बीएचयू को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल लेवल के कोर्सेज कौन बनाते हैं सर, एनसीईआरटी या एनआईओएस, इन दोनों संस्थाओं को दिया गया है। बिल्कुल सर, तो ये पार्टनर है, समझ गए सर आप क्या है, इन्हीं को नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं दूसरे भाषा में हम लोग सर, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है सर जी। अच्छा yes, सर। अब ये कह रहे हैं कि स्वयं क्यों, इनका बेनिफिट क्या है, तो देखिए सर स्वयं के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, फ्री कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब घर बैठे बैठे एक लड़का, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने गोरखपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, दाखिला का मतलब एडमिशन ले लिया, ठीक है सर। अब वहां पर बहुत अच्छे टीचर नहीं है, 4-5 ऐसे कोर्स थे जिनको पढ़ाने वाले अच्छे टीचर नहीं, कोई बात नहीं है, वो घर बैठे बैठे गोरखपुर में रहते हुए आईआईटी कानपुर या आईआईटी बैंगलोर या आईआईटी बंबई के टीचर का कोर्स कर सकता है जो स्वयं में अवेलेबल है। अभी आपको हम दिखाएंगे वो सारे कोर्सेज। तो कहने का मतलब थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल फ्रॉम द टॉप मोस्ट टीचर्स ऑफ आईटीज, तो वहां से आईटी के टीचर का कोर्स कर रहा है। तो कहने का मतलब फ्री ऑफ, अच्छा उसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं सर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कैन डू कोर्सेज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी। एक आदमी है, एक बच्चा है जिसका, मान लीजिए कि वो बच्चा कासगंज एटा में रहता है ना, रूरल एरिया में रहता है, उसका दाखला या एडमिशन एएमयू में नहीं हो पाया, घबराने की कोई बात नहीं है, वहां से कुछ कोर्स करे, बाकी बहुत सारे कोर्सेज एएमयू टीचर्स के स्वयं पे मौजूद है। तो कह तो रहा यूजीसी कि आप 40% कोर्सेज वहां से कर सकते हैं, तो आप 40% कोर्सेज वहां से करिए स्वयं से, तो एएमयू का कोर्स कर लीजिए, बीएचयू का टीचर का कोर्स कर लीजिए, आप टेक्नोलॉजी में अगर है तो एनपीटीएल यानी आईआईटीज की कोर्सेज कर लीजिए। कहने का मतलब इट इज अप टू यू कि आप क्या करते हैं। सो एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा है सर सेल्फ पेस्ड लर्निंग। बोलिए कि सर इसमें क्या है, लर्न एट योर ओन पेस एनी टाइम एनीवेयर। कहने का मतलब जब आपको वक्त मिले, आप मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको अभी जरूरत है कि आपको सी लैंग्वेज या मान लीजिए एक नई लैंग्वेज आई पाइथन मान लीजिए, और पाइथन हमको सीखना है, तो भाई हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं ज्वाइन कर सकते इसलिए कि हम तो नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक, तो कोई बात नहीं सर, आप अपना जॉब कीजिए, रात में जब 1 घंटा फ्री हो तो पाइथन का बहुत सारा कोर्स स्वयं पे मौजूद है, तो जाइए और स्वयं पे करके वो काम सीख लीजिए। तो आप अपने पेस पे लर्निंग कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर, सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर सर? यस मैडम बताइए। जी सर। अच्छा और क्यों सर? एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपको क्या मिलेगा सर? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो
नहीं चाहे सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप लीजिएगा। सो अर्न सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी। मानी लड़के के लिए सोचिए कि कितने एजाज की बात है, कितने ऑनर की बात है कि एक गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लड़का और आईटी बॉम्बे के 4 सर्टिफिकेट उसके पास है। 4 कोर्सेज मैंने आईटी बॉम्बे से किए हैं, 3 आईटी मद्रास का किया हुआ है और 2 हमने एमयू का कोर्स किया हुआ है। तो ये उसके लिए रिकॉग्निशन की बात है या नहीं है सर? है सर। है ना? अच्छा, इसके लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं, कुछ नहीं करना, घर बैठे बैठे सब काम कर रहा है। ये फायदे देखिए स्वयं के। और सिर्फ आपने खाली एजाज नहीं हासिल किया, ऑनर हासिल नहीं किया, रिकॉग्निशन नहीं, बल्कि जो 4 क्रेडिट का कोर्स किया वो आपके रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कहां पर आपके, कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? आपके ग्रेड्स में। हाँ, ग्रेड शीट, आपके मार्कशीट पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो कहीं से नुकसान का सौदा नहीं, हमेशा फायदा है, विन विन सिचुएशन है। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, हमारे ग्रेड शीट पे भी लिखा जा रहा है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ मैं पढ़ भी रहा हूँ अपने घर बैठे बैठे। आईटी में दाखिला भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आप सोचिए ना जरा सा इस सिचुएशन को सोचिए कि हम लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए आईटी में दाखिला करवाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। आप तो यहाँ खुद कह रही यूजीसी, कोई बात नहीं बाबा, उसका किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दो और 40% मैंने आधा से कोर्सेज कहाँ से कर सकता हूँ? आईटी के टीचर के साथ कर ले, एमयू के टीचर के साथ कर ले, बीएचयू के टीचर के साथ कर ले, जिसके साथ करना चाहे वो कर ले। तो हम और आप एज ए टीचर भी बच्चों को काउंसलिंग कर सकते हैं कि बेटा दुनिया जो है सिर्फ आईटी तक महदूद नहीं है। अगर कोई बात नहीं, आईटी में आप पे दाखिला नहीं हुआ, मत घबराइए, कहीं भी अच्छी जगह में एडमिशन लीजिए और बाकी कोर्सेज आप स्वयं के माध्यम से, एनपीटीईएल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी। तो सीखना अगर आदमी चाहे तो उसके लिए सर कोई मौके की कमी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलिए सर, यहां तक अगर किसी को कुछ बात है, पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं सर। सर नो सर, इट्स क्लियर। ठीक क्लियर सर, क्लियर है। अब देखिए सर, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हम लोग इसको अभी देखते हैं। अब हम बात करते हैं सर कि कोर्सेज जरा दिखा दिए सर, ऑल कोर्सेज, कितने कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो देखिए ऑल कोर्सेज के लिए आपको ये ऑल कोर्सेज देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर लिखा ऊपर में देखिएगा सर, ऑल कोर्सेज। जी सर। इसको क्लिक कर दिया मैंने, जैसे क्लिक किया तो देखिए सर यहाँ कोर्सेज सब आ गए। यहाँ पर देख रहे हैं सर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं सर, ए से शुरू होने वाले सब कोर्सेज हैं, बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले। अब ये सब सारे कोर्सेज के नाम है, देख पा रहे हैं सर, ये सब जेंडर सेंसिटाइजेशन, बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री, बेसिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, देख रहे हैं सर, ये देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना, आईसीटी इन लाइब्रेरी, देख रहे हैं सर, ये है ना, जी सर, देख पा रहे हैं सर इंफॉर्मेशन। जी सर, यस सर। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप बोलिएगा ये कोर्सेज कहाँ से आती हैं, कैसे होती हैं, क्या है, ये बताइए सर थोड़ा सा। बोलिएगा सर यहाँ सिर्फ इग्नू लिख करके आ रहा है तो ये इग्नू की कोर्सेज है ना। हम लोग अब नेशनल कोऑर्डिनेटर में ऑल ले लीजिए, जैसे ही ऑल लेंगे तब देखिए ये पूरा आ गया सर, AICT CCS, देख रहे हैं, अब अलग अलग आने लगा, गौर कर रहे हैं? जी सर। हाँ, अभी पूरे कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखेंगे। खैर, तो आप बोलिएगा लोड मोर करते जाइए सर, आप देखते जाइए सर। ये नीचे देखिए कितने कोर्सेज हैं। IMB बैंगलोर हम बता रहे थे ना, NCERT के स्कूल के लिए देखिए, बिजनेस स्टडीज 11th क्लास का पार्ट 1 है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। NPTEL के देखिए कोर्सेज बात कर रहे थे हम लोग, है ना, बिजनेस मार्केटिंग टेक्नोलॉजी फोकस, बिजनेस नेगोशिएशन एंड सो देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। बोलिए सर कितना कोर्स होता है? तो इसमें स्वयं क्या करती है यूजीसी, स्वयं में 2 सेमेस्टर में चलती है सर। एक जनवरी टू जून पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर इनका है जुलाई टू दिसंबर। अभी जो दूसरा सेमेस्टर चल रहा है जुलाई से शुरू हुआ है, 22 जुलाई से वो कोर्सेज शुरू हुए हैं, दिसंबर तक चलेंगे सर, ठीक है। और अगला सेमेस्टर फिर जनवरी से शुरू होगा, 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। और हर सेमेस्टर से पहले लगभग 1000 कोर्सेज यूजीसी अपलोड करती है। इसमें कितने कोर्सेज सर स्वयं पे कितने कोर्सेज करते हैं? 1000 उससे ज्यादा नहीं है ना, 1000 कोर्सेज अपलोड करते हैं। और ये कोर्सेज के नाम है, आप देख पा रहे हैं, ये सब सारा कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है सर, जरा एक आध कोर्स हम लोग को दिखा तो दीजिए कैसा दिखता है। तो ये देखिए सर, लेफ्ट हैंड साइड पे फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, तो इसमें हम मान लीजिए आपको दिखाते हैं INI के कोर्सेज। INI का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के कोर्सेज आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है सर। तो देखिए सर, तो सबसे पहले तो आप INI क्या होता है अगर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए सर, INI देख रहे हैं, स्वयं के प्लेटफॉर्म INI था ना, ये INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सर, देख पा रहे हैं आइकन? यस सर। उसको मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो देखिए सर, ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ
नेशनल इंपॉर्टेंस। इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है, सारी बातें लिखी हुई, इसमें जाइए। वी कैटलॉग, देखिए यहाँ पर लिखा व्यू कोर्स कैटलॉग, इसको आपने क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे सर तो ये INI यानी BHU और AMU ने जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, इस सेमेस्टर की बात हो रही है, जुलाई 2024 सेमेस्टर की बात, ये दिसंबर तक चलेंगे। तो देखिए सर, ये बेसिक स्टैटिस्टिक यूजिंग आर, ये प्रोफेसर हर्ष प्रधान ने किया है, BHU के हैं। इसी तरह से डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट सिमुलेशन अवधेश कुमार हैं, BHU के हैं। इसी तरह से देखिएगा सर लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग, आप AMU के हैं। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री प्रोफेसर मुनीर साहब हैं, और इस तरह से बहुत सारे कोर्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है सर, तो मान लीजिए हम लोग इसमें बात करते हैं। देखिए सर, एक कोर्स है डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं? यस सर। तो ये प्रोफेसर Yes, फैसल sir. साहब और प्रोफेसर मोहम्मद नदीम ने मिलकर डेवलप किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मान लीजिए इस कोर्स को हम देखना चाहते हैं, क्लिक कर दिए सर, इसको कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो देखिए सर यहाँ पर अब दिखने लगा आपको डेटा साइंस यूजिंग क्या पाइथन, देख पा रहे हैं सर? ये बताइएगा सर, हमारा स्क्रीन विजिबल है या नहीं, प्लीज कंफर्म। Yes, है। sir. visible है। यहाँ देखिए सर, प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर फैसल अनवर, प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, दे बिलोंग टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब लर्नर्स इनरोल्ड देखिए सर कितने हो चुके हैं इसमें, देखिए तो जरा कितने लिखे हुए सर। 17,790। इसीलिए इसको मैसिव बोलते हैं कि एक साथ यहाँ 17,000 लड़के इनरोल हैं। बहुत से कोर्सेज में 20,000, 25,000, 50,000 लड़के इनरोल होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसिव ऑनलाइन कोर्स। तो देखिए सर, ये ऑनगोइंग कोर्स है, इलेक्टिव नेचर का कोर्स है, 12 वीक का कोर्स है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, 4 क्रेडिट का कोर्स है, यूजी या पीजी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं। 22 जुलाई से शुरू हुआ है, 11 अक्टूबर यानी 12 वीक तक ये कोर्स चलेगा, 11 अक्टूबर तक। और इसका एनरोलमेंट 5 तारीख यानी कल खत्म हो गया है, इसीलिए इसमें एनरोलमेंट नहीं दिख रहा, एनरोलमेंट क्लोज हो गया सर। अब एग्जामिनेशन जो देना चाहते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए इनरोल हो सकते हैं 16 अगस्त तक, और 25 अक्टूबर का इनका फाइनल एग्जाम होगा। ये स्टैटिस्टिक्स सब यूजीसी तय करके यहाँ लिख देती है। अब यहाँ पर क्या है सर, ये 2 मिनट का एक वीडियो है सर, अगर आप देखना चाहें। इसमें प्रोफेसर साहब ये बता रहे हैं कि 12 वीक में, यानी एक सेमेस्टर में 12 वीक होते हैं इसमें, तो 12 वीक में ये कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सो दैट आफ्टर seeing this introductory video a student can decide whether this course is useful for me or not. If it finds that it is useful, then he or she will enroll into that course. ये 2 महीना पहले सर कोर्सेज ओपन हो जाते हैं एनरोलमेंट के लिए, यानी अगर जुलाई से शुरू होना था तो ये मई में ही कोर्सेज यहाँ पर आ गई थी, ताकि लड़का इसको देखे और अपने आप को एनरोलमेंट करे। आपने देखा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम 17,000 बच्चों ने इसमें क्या किया हुआ है सर, एनरोल किया है। ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 मिनट में देखिए प्रोफेसर साहब ये बता रहे हैं इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। ये दोनों प्रोफेसर हैं, ये दोनों बता रहे हैं कि क्या क्या चीज ये लोग कवर करेंगे इस कोर्स। ठीक है सर, तो आपने वीडियो देखा, यानी कहने का मतलब 2 मिनट का वीडियो देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, या प्रोफेसर साहब क्या क्या इसमें कवर करेंगे। अब देखिए अबाउट द कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कोर्स में क्या क्या चीजें बताई जाएंगी, किसके लिए है या नहीं है। इंटेंडेड ऑडियंस कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, यूजी पीजी इंडस्ट्री प्रोफेशनल कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर कोर्स लेआउट लिखा हुआ है कि वीक 1 में प्रोफेसर साहब ये टॉपिक कवर करेंगे, वीक 2 में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। इसी तरह से पूरा 12 वीक का सिलेबस दिया हुआ, देख पा रहे हैं सर यहाँ 12 वीक का। जी सर। यहाँ किसी एक टॉपिक पे लेक्चर नहीं है जैसे OER में होता था। देखिए पूरे सिलेबस इतने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, है ना, होंगे। ये बुक्स एंड रेफरेंसेस लिखा हुआ है सर, जो इन कवर कर रहे हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्टर के बायोडाटा लिखे हुए हैं कि क्या क्या है, इनका नाम क्या है, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये कोर्स सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा वो लिखा हुआ है कि आपको जमा 25 अक्टूबर को फाइनल एग्जाम होगा एंड सो आपको जाकर के देना पड़ेगा, है ना। और क्राइटेरिया टू गेट ए सर्टिफिकेट क्या है, तो हमने आपको बताया था हर वीक में क्या होता है सर, इनका टेस्ट होता है। तो 12 वीक में 12 टेस्ट होंगे, तो उसमें क्या रहा कि 8 टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। आप पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं सर, 40% मार्क्स लाने हैं। इसी तरह से आपको जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप सक्सेसफुल होंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी 40/100 अगर आया तभी आपको, और अलग अलग भी 40% लाना है, असाइनमेंट में भी लाना है और फाइनल एग्जाम जिसको प्रॉक्टर्ड एग्जाम बोलते हैं उसमें लाना है। लाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर सारे जितने भी मूक्स कोर्सेज हैं उनका ये स्ट्रक्चर है। और ये
पेज जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पेज, ये 2 महीना पहले, कोर्स लॉन्च होने से 2 महीना पहले लॉन्च हो जाता है। ठीक है सर। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक स्टैटिस्टिक यूजिंग आर, तो आप देखिए सर यहाँ अभी 1426 इनरोलमेंट हुए हैं, ये कोर्स अभी ओपन है। गौर कर रहे हैं सर, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये सर। के लिए है, कोई आदमी सीखना चाहता है, मान लीजिए आर लैंग्वेज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और देखिए इसमें लिखा हुआ 8 वीक का कोर्स है। प्रोफेसर साहब कोर्स वीक में क्या क्या पढ़ाएंगे पूरी बात लिखी हुई है, इनके बारे में लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ इस कोर्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इनरोलमेंट जो है 19 अगस्त को बंद होगा इस कोर्स का। देख रहे हैं सर? यस जी सर। तो लगता है कि हाँ ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। क्लिक करेंगे, आपका नाम पता पूछेगा, आपका बोलेगा यस यू हैव ज्वाइंड द कोर्स, आपके पास मेल आ जाएगा और इस प्रोफेसर के सारे वीडियोस वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए सर या नहीं समझे आप सब बताइए। यस सर। जी सर। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया अबाउट द लेआउट ऑफ क्या मूक्स या स्वयं क्या होता है। तो स्वयं इस प्लेटफॉर्म का नाम है सर। जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ ये सारे कोर्सेज हैं, ये पूरी प्लेटफॉर्म का नाम स्वयं है और ये सारे कोर्सेज हैं जिसको मूक्स बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या स्वयं पर है तो आप बोल सकते हैं स्वयं कोर्सेज। ये सारे स्वयं कोर्सेज के नाम है। मेरी बात समझ रहे होंगे सर? ये Yes, sir. यस सर। तो ये सारी चीजें सर हैं। अब वो बोलिएगा सर ये तो ठीक है, हम भी ऐसा कोर्स एज ए टीचर बनाना चाहते हैं जैसे लोगों ने बनाया, तो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो यस आप भी बना सकते हैं। जैसे देखिए सर ये कोर्स है इन्वायरमेंटल स्टडीज पे। आप देखिए इस वक्त 7530 बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं। देख रहे हैं सर इन्वायरमेंटल स्टडीज, गौर कर रहे हैं? यस सर। आप देख सकते हैं कि क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा और ये सब कोर्स लेआउट है कि वीक 1 में ये सारे लेक्चर्स होंगे, वीक 2 में इतने सारे लेक्चर होंगे। देखिए इस तरह से इन्होंने क्या किया हुआ सर ने 61 लेक्चर्स के बारे में लिखा हुआ है। टोटल 61 लेक्चर इनके 12 वीक तक होंगे, है ना। ये मैडम है जो पढ़ा रही हैं इस कोर्स को, इनके साथ शरद कुमार हैं एंड सो अब ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ ए स्वयं कोर्स लुक लाइक। यहाँ तक समझ में आ गया सर? यस सर। जी सर। Yes, sir. और लड़का कैसे इसमें इनरोल हो सकता है, कैसे क्या कर सकता है। अब इसमें सर्टिफिकेशन के लिए क्या है सर कि करना पड़ता है कि आपको अस्सलाम वालेकुम एग्जाम सर। देना है और Sir, Assalamu certification- Sir, sorry for the disturbance, sir. Please. Sir, can we take the 10 minutes break, sir? हाँ सर आ Because रहे you हैं, are आ रहे हैं ब्रेक बस ले रहे हैं सर, ले रहे हैं ब्रेक लेंगे। okay, sir. Sir, ब्रेक लेने you वाले are हैं। जस्ट एक मिनट sir. मुझको दीजिए। हम Okay. बात कर रहे थे कि पढ़ना चाहे सीखना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सर अगर सर्टिफिकेशन चाहिए और बच्चे को एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए क्या होता है सर कि एक एग्जाम सेंटर बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट का खर्च होता है। एनटीए जो है उस एग्जाम को कंडक्ट करती है तो एक सेंटर बनाते हैं, उसका भी खर्च आता है। तो उसके लिए आपको एक नॉमिनल फीस है 750 रुपए की फीस देनी पड़ती है। कितना देना पड़ता है सर? 700। 750. हाँ, और ये देखिए उसके लिए रजिस्टर भी करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 16 अगस्त तक टाइम है, आप इस कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। और 25 अक्टूबर को आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, और सेंटर आपको बता दिया जाएगा कि कब सेंटर होगा। तो आप देखिए सर यहाँ सीखने के लिए तो 7530 बच्चों ने दाखिला लिया है और अब तक एग्जाम के लिए अभी कितने बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है? 41 बच्चों ने अभी कर लिया है। 16 तक अभी टाइम है, तो देयर इज एनफ टाइम, 10 डेज का टाइम है अभी। तो ये बच्चे क्या करके, कल तक तो रजिस्ट्रेशन का टाइम था तो बहुत से लोग रजिस्टर किया, अब एग्जामिनेशन का टाइम है तो बच्चे इसको लेके एग्जामिनेशन के रजिस्टर करेंगे और यही बच्चों के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और ये कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर सर कुछ देर का ब्रेक लेते हैं एंड 5:30 विल बी ओके सर? 5:30 में हम लोग मिलते हैं फिर, Yes, sir. ठीक है। तो वी आर टेकिंग ब्रेक फॉर 20 मिनट्स एंड वी विल रीअसेंबल एट 5:30। इज इट ओके? जी सर। sir. और हम जब लौटेंगे सर तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन पहले कर लेंगे, आपको Yes, sir. जो सवाल है वो Yes, पूछ लेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, ठीक है सर? सर सेम लिंक से करेंगे। ज्वाइन करना है इसी पे दूसरे रहेंगे। वाले से इसी पे 5:30 रहेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। थैंक यू। हम सिर्फ अपने आप को म्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। Thank you, sir. Thank you so much.